اس میں یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے جس میں آپ کا کوئی نمایاں کردار ہوگا اور جو لوگ شامل ہوں گے ان کی غیرت اور عزت کو سلام، آپ کی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو ایسی طرح دی ہے۔ تو باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک، میں تلاوت کلام پاک کے لیے نسیم سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت سے آج کے اس فرمائیں۔ ہیلو پورٹریٹ دور کھڑونا ہوتے ہیں، ہوتے کھڑونا ہوتے کھڑونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ تلاوت سے آج کی تقریب کا آغاز ہو چکا۔ اب میں ابتدائی گفتگو کے لیے گزارش کروں گا راجہ جلال شکیل سے کہ وہ 2 منٹ میں اپنی مختصر گفتگو کریں۔ راجہ جلال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں رملہ کے غریب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس احتجاج میں شریک ہوئے اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہو، آپ نے ثابت کیا آپ اپنے مسائل کے لیے یکجہت، آپ نے ثابت کیا کہ آپ اپنے ترین امداد پورا کروانا چاہتے ہو۔ میں کانڈی کی روح منظور ہوئی پر میں ان کے اس عوام اعلیٰ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا ایک ترین مطالبہ پورا ہوا۔ ہم اپنے حقوق کی خاطر آج نکلے ہیں، ہمارا ذاتی کسی سے کوئی عناء نہیں ہے۔ ہم رنگلا درکوٹ روڈ کی بحالی چاہتے ہیں، اس کا کام کا اس کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں۔ ہم رنگلا ڈگری کالج کی بحالی چاہتے ہیں، ہم رنگلا اسپتال میں اسٹاف عملے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج اس کال کے لیے اس لیے احتجاج کروانے ہیں۔ میں اقام بالا سے اور اس مظفر آباد میں بیٹھے ہماریوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے حقوق نہ حل ہوئے، اگر ہمارے مسائل نہ حل ہوئے تو یہ میں بتا دوں کہ پھر آپ کا رنگلا کی طرف جانا، پھر آپ کا آچکی کی طرف جانا، پھر آپ کا رنگولی کی طرف جانا، پھر آپ کا گھوڑی کے چھپڑیوں کی طرف جانا، یہ آپ کے لیے اچیرن ہو جائے گا، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے بنیادی مسائل، ہمارے بنیادی حقوق ہمیں ہماری تحریر پر ملنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ کا جینا آرام کر دیں گے۔ اگر ہمیں ہماری بنیادی ضروریات، ہمارے بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں تو پھر یہ کوئی سوچے کہ اس کی سیاست، اس کی کرسی باہر رہے گی یا تخت غازی آباد باہر رہے گا۔ 76 سالوں سے یہاں پر پہلے ایک بڈھا بیٹھا رہا جس نے ہمارے حقوق ضبط کیے، اب اس کا نظر بیٹا بیٹھا ہے جو ہمارے حقوق کو غصب کر رہا ہے، اور ایک گاندھی کا بڈھا جو پچھلے 25 سال سے ہمارے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ ہم ان کے تاجوں کو بات دیں گے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے حقوق ہماری تحریر پر، ہماری قوم پر نہ ملے تو آپ کی سیاست چیرن کر دی جائے گی، آپ کا درکوٹ سے اوپر جانا ہم بند کر دیں گے۔ یہ سوچیں کہ رنگلا کے لوگ رنگلا کی روڈ پر دھکے کھائیں، رنگلا کی سڑک پر دھکے کھائیں، ہماری مائیں بہنیں رنگلا سے درکوٹ پونچتے ہوئے دھکے کھائیں، اور تم سکون سے مظفر آباد یا تخت غازی آباد قائم کر سکو۔ یہ تمہارا ایک سپنا ہے، اس سپنے کو ہم چکا چور کر کے رکھ دیں گے۔ ہم تمہارے تاجوں کو، ہم تمہارے تختوں کو، ہم تمہارے اس اقتدار کو پاؤں کی چوٹی پر رکھتے ہیں۔ ہم تمہارے اس اقتدار کو، تمہارے اس تاج و تخت کو اگر ہمارے حقوق نہ دیے گئے تو اپنے پاؤں کے نیچے حقوق کے رکھ دیں گے۔ میں آج آپ تمام لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، آج نکلا اپنے حقوق کی خاطر اب بہت ہو چکا۔ پہلے ایک بڈھا سمراج جس نے 76 سال ہمارا اقتصال کیا، اب اس کا بیٹا اب وہ اقتصال کر رہا ہے۔ گاندھی کے اس بات سے مل کر اب وہ اپنے بیٹے کو آگے لانا چاہتا ہے۔ ہم اس سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آج درکوٹ آئے ہیں۔ ہمارا کسی بھی انسان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق اور ہمارے مسائل۔
دیگر کوئی بات نہیں. اس سے آگے اگر ہمارے حقوق چونکہ یہاں پر قائدین موجود ہیں وہ وقت بتائیں گے کہ کب کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں. آج کا اس مظاہرے کا مقصد اقوام بالا تک ایک بات پہنچانا تھا. وہ جب بھی اس کی اگلی کال دیں گے ہم جانی مالی اور علمی طور پر اس کا ساتھ دیں گے اور اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. تو پھر ہم ثابت کریں گے کہ رنگلا کے غیور عوام کا اتصال اب نہیں ہوگا. رنگلا کے غیور نوجوانوں کا رنگلا کے نوجوانوں سے تعلیم چھین لے گئی. رنگلا کے ڈگری کالج کا نوٹیفکیشن ہوا اس کو مسترد کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. رنگلا اسپتال بحال ہوا اس کا عملہ چھین لیا گیا. نا اب یہ ایسا نہیں ہوگا. اب اس سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. بس ہمارا اقتصاد بہت ہو چکا. 76 سال تم نے راج کر دیا. اب بس اور بس. بہت شکریہ شکیل جلال شکیل صاحب. میں یہاں کوٹلی سے راجہ شکیل صاحب, راجہ امتیاز صاحب صاحبوں کے ای او, درکوٹ سے راجہ ارشد صاحب, طفیل عجائب صاحب, عثمان وحید فاروقی صاحب, راجہ ممتاز صاحب صاحبوں کے ای او چندراٹ سے, راجہ فاروق صاحب چھپڑیاں سے اور راجہ نواز صاحب چھپڑیاں سے, راجہ جمیل اکبر صاحب پتر وستو سے اور فرنٹ کے نمائندگان یہاں کارکنان جو تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس احتجاجی ایجنڈے کے لیے میں تالیوں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. آج کی تحریک کے بانی راجہ یونس انقلابی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جناب راجہ یونس انقلابی. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ ہماری جو ٹیم ہے ان کی طرف سے ایجنڈا قائدین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں شکریہ آپ سب کا ہم ادا کریں گے آخر میں. آج کی احتجاجی کال کا ایجنڈا یہ ہے کہ غربی پاک کے استحصال کے خلاف, غربی پاک کے ان لوگوں کے استحصال کے خلاف جو لوگ پورے غربی پاک میں استحصال کا شکار اس کو جو 10 کلومیٹر روڈ ہے کونڈی پلٹ میں ہوئی, ہم ان کو اپیل کی عطا کر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ان کا حق تھا, یہ حق انہوں نے جدوجہد کر کے لیا ہے اور کھوانا پل کے اندر اس کونڈی کے لوگوں نے اپنا پسینہ گرا کر 10 کلومیٹر روڈ حاصل کی ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں کونڈی والوں آپ کو, لیکن ہم اس بنیاد پر آج زور پہ آئے ہیں کہ ہمارے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہماری روڈ یہاں سے ملوٹ تک جو ایجنڈے میں شامل ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کی بحالی کی جائے, ہمارا ڈگری کالج کو بحال کیا جائے, چھپڑیاں گھوڑی کے روڈ کو نوٹیفکیشن میں نہ شامل کرنا ظلم ہے, اس کو شامل کیا جائے. اس کے بعد سبکوٹ روڈ, جھالا پتھر روڈ, ہیلسٹرانگ جونیئر کونسل میں استحصال, چمیاٹی میں استحصال, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے غربی پاک میں استحصال کے خلاف ہم قائدین کے سامنے آغاز کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, نوجوانوں, ہم کسی کے خلاف روڈ پہ نہیں آئے, ہمارا ساتھ کسی سے جھگڑا نہیں ہے. ہمارے لیے صدارتی صاحب آپ بھی قابل احترام, ماجد لطیف صاحب آپ بھی قابل احترام. قابل احترام کیوں نہ ہوں, آپ کو ہم نے 30,000 ووٹ دیے. صرف یہاں سے اوپر یہ تعصب کی بات نہیں, آپ کو ہم نے عزت دی. کم از کم ہم سے مشاورت کر لیتے ہیں بجٹ کے معاملات میں. جہاں تک لوگوں کا مسئلہ ہے, کونڈی کا کوئی مسئلہ ہوا, ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہم کوالے سے لے کر مقبجی تک ایجنڈے کو لے کر ساتھ چلیں گے. ہمارے کالج کا مسئلہ ہے, ہمارے روڈ کا مسئلہ ہے, ہماری روڈ کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم آئے. میں اسٹیج
साहब से कहूंगा कि जो भी हम कर नहीं जाए, हमने चुके एक लिमिट टाइम को कर दिया हुआ है, 2-3 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा गुलाबी साहब। अब जो भी आने वाले मुकर्रीन हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो 2-2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं मुख्तर वक्त के लिए राजा सरफराज साहब PTI तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक रंगला से है, वो अगर यहाँ मौजूद हो तो वो तशरीफ लाएं और मुख्तर खिताब करें। जनाब राजा सरफराज साहब। आज के इस पुरअमन एहतजाज में राजा यूनुस इनकलाबी साहब और आपके साथ तमाम जी शऊर नौजवान जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के लिए भरपूर टाइम निकाला और तमाम काम छोड़ के अपने हुकूक की जंग के लिए आपके साथ बरसरे पैकार खड़े हुए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुख्तसरन बगैर किसी लंबी तहमीद के मैं अपने एजेंडे की तरफ आऊँगा। आज का एहतजाज बुनियादी हुकूक का एहतजाज है। अब 2022 में आज बिजली के लिए एहतजाज कर रहे हैं, हम 2022 में आज रोडों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मेरा तल्लक रूलिंग गवर्नमेंट से है, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट से है जिसमें अल्लाह ताला माफ करे एक ऐसा बंदा बैठा दिया हमने कि जिसका न कोई आगे है न कोई पीछे है। मुझे शर्म आती है उसका नाम लेते हुए। कभी सोशल मीडिया पे क्या उसकी खबर आती है, उसे क्या पता कि हमारे इन मासूम लोगों के क्या मसाइल है। वो तो इस्लामाबाद में बैठ के तो मजे ले रहे हैं। मैं यहाँ के जो हमारे नुमाइंदान हैं, मैं उनसे आज मुख्तसरन ये पूछना चाहता हूँ, जब इलेक्शन का वक्त होता है तो आप लोग घर घर जाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करूंगा, जिस जमात को हमने वहां से जितवाया, जिस जमात के लिए हमने काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन पुलिस स्टेशन से जूतियां मिली हैं, 0 वोट मिले, उन पुलिस स्टेशन को एकोमोडेट किया गया। लानत है तनवीर इलियास तुम पे। मैं यह पूछना चाहता हूँ, चाहे जाके जुल्फिकार अब्बासी साहब का पुलिस स्टेशन देखें और उनकी एडजस्टमेंट देखें, ये किस बुनियाद पे की गई है। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि सुरंग का नतीजा देखें और उसके जो एकोमोडेशन की गई है उसको सामने रख के फैसला किया जाए। मैं अपने स्टेक होल्डर से ये पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ हैं आप? आज हमारे लोगों को आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा यूनुस साहब की तरह है वो मैं इलाका कांडी को, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा अपने कॉन्टेस्टेंट को कि ये याद रखिएगा, आपने 12,000 वोट हमारे ऊपर अपर बेल्ट से लेके आज जिस तरीके से आपने झाड़ू फेर के साफ कर दिया हमारे इलाके को, आज से एक नई तहरीक का आगाज करते हैं। हमारी कोई जमात नहीं है। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे से रिजाइन करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजाइन करता हूँ और एक नई पार्टी का वजूद करते हैं, और वो पार्टी होगी अवामी हुकूक की पार्टी, जो जहाँ मिलेगा उसको वहीं पे बिगाड़ेंगे और अपने लोगों के हुकूक लेके रहेंगे। और तनवीर इलियास, वो वक्त दूर नहीं है, तुम याद रखो, तुझे कॉलेज से इधर आने के लिए 100 दफा सोचना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हमारे छपिया गोरी के लोगों को मुतासर किया गया, जिस तरीके से हमारे कोटरी के लोगों को मुतासर किया गया, जिस तरीके से हमारे बाक्सर के लोगों को मुतासर किया गया, जिस तरीके से लोगों को मुतासर किया गया, इंशाअल्लाह हम जो है वो लोगों में दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया राजा सरफराज साहब, आपने अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी दौरान राजा तनसीम अशरफ साहब साफी, राजा ताहिर अशरफ साहब, राजा जाहिद एडवोकेट साहब, राजा तौसीफ आसिफ एडवोकेट साहब और राजा अमर न्याज साहब जो तशरीफ लाए, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं मुख्तर वक्त के लिए गुजारिश करूँगा जनाब राजा उस्मान नज़ीर PYO के हमारी सरबराह है रंगला के, जनाब वो अपने ख्याल का इज़हार करें। राजा उस्मान नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरबी बाग के गयूर लोगों, कायदीन गरबी बाग, मैं मुख्तसर से और जामिया बात करूंगा। मैं तो सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्ट हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूनुस इनकलाबी का शुक्रिया अदा करता हूँ,
جس نے عوام کے حقوق کے لیے مظاہرے کا اقدام کیا. قائد غربی باغ جب ہم جھرکوٹ سے رملہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو یقین مانیے اس کو لے کھاتے ہوئے یہاں سے گاڑی جب رملہ 13 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے تو جس میں 7,772 کھڈے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قائدین غربی باغ جھرکوٹ سے جو اوپر کی طرف روڈ جا رہی ہے اس پہ آگے جا کے مظفر آباد کی طرف بھی ٹچ ہو رہی ہے اور باغ کی طرف بھی ٹچ ہو رہی ہے. یہاں سے پبلک سروس 26 کوسٹر یہاں سے اوپر کی طرف جاتی ہے جن کی ایک کوسٹر کی مالیت 1 کروڑ سے زیادہ ہے. قائدین غربی باغ جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے. قائدین غربی باغ جب ہم ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹر میسر نہیں ہوتا. قائدین غربی باغ جب ہم اپنے مرکز رملہ میں آتے ہیں تو خوبصورت بلڈنگ دیکھ کے ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں پہ دیا ہوا کالج وہ بھی کینسل ہو چکا ہے. قائدین غربی باغ کس کو رملہ میں لوگوں نے عزت نہیں دی. آج ہم پرامن مظاہرہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے اپنی اپیل لے کے آئے ہیں کہ خدارہ ہمیں اس طرح اگنور نہ کیا جائے. اگر ہمارے ساتھ یہی سوتیلی معاملہ سلوک رہا تو یقین مانیے تو پھر ہمیں لاٹھی لے کے بھی آنا پڑے گا. تو ہم یہاں پہ آئیں گے. ہمیں گولی سے بھی ڈر نہیں ہے, ہمیں پولیس سے بھی ڈر نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے حق کے لیے ہمیشہ شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے. اسی وجہ سے تو بہت شکریہ راجہ عثمان عزیز صاحب. اپنے مقصد کے لیے ٹرانسپورٹ یونین رملہ کے صدر جناب راجہ یاسر شاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان رملہ اور اپر بلٹ کے شکریہ اور اپنے حقوق کی بات کی اور مزید بات کریں گے کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے. قائدین نے کہا کہ 1-2 منٹ کی بات کریں گے تو 5 سال ووٹ اور ہمارا اتصال یہ ہے نہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہے, نہ ہمارے پاس روڈ ہے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی بجلی کا سسٹم ہے. جب دیکھو تو رنگلا کی بجلی بند, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا ہوا جی رنگلا روڈ خراب ہے. اور اسٹیک ہولڈر ہم سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں 5 سال کے بعد اور ووٹ لے کر پاکستان سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. یہاں نظر نہیں آ رہا کوئی آدمی. ایک افتخار ایوب صاحب یہاں موجود ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں آنے پر ان کا, لیکن ہمیں یقین مانو ہمیں مایوس کیا گیا ہے. یہ مایوسی نہیں ہے, یہ بہت بڑی مشکل ہے. یہاں یہ جھرکوٹ تو ہمارا گھر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گوالا تک ہم پیدل چل سکتے ہیں, لیکن ہمیں مظفر آباد جانا پڑے گا. اگر ہمارا یہی حال ہوا تو ہم مظفر آباد پہنچیں گے. تعمیر الیاس صاحب کاش کہ آپ 2 دن پہلے ملوٹ گئے, کالا بنڈ کا نام ہی کسی نے نہیں سنا تو وہاں کسی کی کٹی مر گئی, آپ وہاں تعزیت کے لیے چلے گئے. یہاں جو لوگوں کے مسائل ہیں یہاں دیکھا نہیں, اوپر سے حلی میں گزر گئے. آپ آئے تو صحیح عوام کے سامنے, آپ نے ووٹ لیے, آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے, وقت خاصا گزر گیا. پیچھے ساتھی اشارے کر رہے ہیں پلیز بند کر دو, تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا شکریہ, یونس انقلابی کی پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام تشکیل دیا. شکریہ. بہت شکریہ راجہ یاسر. اب میں اسی دوران راجہ افتخار ایوب صاحب, راجہ رفاقت کریم ایڈوکیٹ صاحب اور راجہ مدثر اعجاز صاحب یہاں تشریف لائے, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں مختصر وقت کے لیے جناب عثمان وحید فاروقی صاحب, یہ یو آئی سے تعلق ہے, جب اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ عثمان وحید فاروقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال تعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو,
جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ صدر تقریب جناب راجہ یونس انقلابی صاحب، سابق امیدوار اسمبلی راجہ افتخار ایوب صاحب، متحدہ آزادی فورم کے کنوینئر راجہ ارشد صاحب، راجہ عابد علی عابد صاحب اور دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین، میں سب سے پہلے راجہ یونس انقلابی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ موجودہ بجٹ میں ہماری اپر بلٹ کی سیاسی قیادت کو جس طرح محروم کیا گیا اور عوام کو محروم کیا گیا، آپ نے سب سے پہلے عوامی اس درد کو محسوس کیا اور عوامی درد کو محسوس کرتے ہوئے اس احتجاج کی کال دی۔ یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور مجھ سے پیش رو جیسے مقررین نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ دیا۔ دھیر کوٹ سے رنگلا اور آگے ملوٹ باغ کی طرف جانے والی روڈ، اب یہ اگرچہ کاغذوں میں لنک روڈ ہو لیکن یہ لنک روڈ نہیں ہے، یہ مین روڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے نکلنے والی کئی شاہراہ اور بھی ہیں اور وہاں پہ آبادی اب بہت بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آج اگر آپ اس رنگلا روڈ کے اوپر جائیں، میں یہاں دیر کوٹ کے تاجروں سے اور دیر کوٹ بازار کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ ایک مرتبہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ بھی ہمارے مسائل سمجھنے کے لیے اور آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس روڈ کے اوپر سفر کریں، آپ کو یہ احساس ہوگا یہ مین روڈ کس طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رنگلا سے نیچے جالا کی طرف ڈک پتھر اور شکرپڑیاں روڈ، وہ روڈ آج بھی پختہ نہیں ہے۔ کل سبو کوٹ روڈ وہ آج بھی پختہ نہیں ہے اور جو پختہ تھی وہ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رنگلا ہسپتال میں ہمیں بنیادی طبی سہولیات میسر نہیں ہے۔ رنگلا ڈگری کالج کی بات ہوئی، آج تک متعدد مرتبہ ہم نے اس کے حوالے سے تحریک چلائی، لیکن بدقسمتی یہ ہے اس حلقے میں آنے والا ہر امیدوار اسمبلی، خواہ اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، جب وہ ٹکٹ لے کے آتا ہے اس کا استقبال رنگلا کے چوکوں اور چوراہوں پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے رنگلا سے گاڑیاں آتی ہیں، رنگولی سے گاڑیاں آتی ہیں، وہاں کے لوگ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، وہاں کے لوگ اپنی صلاحیتیں پیش کرتے ہیں۔ محترم راجہ افتخار ایوب صاحب، گزشتہ 5 سالوں میں آپ کی حکومت رہی، میں یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہوں، آپ نے اپنے طور پہ ضرور کوشش کی ہوگی، لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نظر انداز کیا؟ میجر لطیف خلیق، آج آپ اپنی 30 سالہ جدوجہد کو پھر غازی آباد کے گھرانے کی گود میں ڈال کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ غازی آباد کے گھرانے کے خلاف دیا، جہاں کی ان نادیدہ قوتوں کے خلاف ووٹ دیا جن قوتوں سے لوگ مایوس تھے۔ 70 سال سے مسلسل ہمارا استحصال ہو رہا ہے، یہاں سے چھپڑیاں گھوڑی کے اور پتھر چالا تک اللہ کی قسم چاہتے ہوئے انسان کو وہ جو جھٹکے لگتے ہیں گاڑی میں، اس سے طبیعت شام تک وہ خراب ہوتی ہے، اگلے دن ہسپتال میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہماری تمام مین روڈ، وہ روڈ جن سے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں، میں آج دیر کوٹ کی تاریخی سرزمین پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں کے اسٹیک ہولڈر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہماری قیادتیں، ان کی سیاسی قیادتیں انہیں محروم کرتی ہیں اور ان کی اگر مجبوری ہے کہ وہ عتیق صاحب کے ساتھ بیٹھنا ان کی مجبوری ہے، خواہ وہ راجہ فاروق حیدر خان ہو، خواہ وہ تنویر الیاس ہو، خواہ وہ عبدالقیوم نیازی ہو، یا اس سے پہلے کے سابق وزرائے اعظم ہو، اگر ان کی مجبوری ہے وہ ان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ میں بہت دردمندانہ انداز سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹکٹ کس کے لیے لے کے آتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ حلقے میں لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے ہمیں جیتنے کے لیے آپ کی اپنی قیادتیں رکاوٹ ہیں، آپ کی اپنی سیاسی جماعتیں رکاوٹ ہیں، وہ ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں آج کے اس احتجاج میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، راجہ یونس انقلابی، آپ نے رنگلا کی غیور لوگوں کی دھرتی سے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، ہم اس تحریک کی بھرپور حمایت کریں گے۔ راجہ فیصل آزاد، آج آپ کو اس چوک کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اجاز صاحب، آپ کو یہاں چوک کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ مولانا امتیاز عباسی صاحب، آپ کو اس چوک کے اوپر کھڑا ہونا
किसी फर्द की बात नहीं है, ये किसी जमात का मसला नहीं है, ये अवामी हुकूक का मसला है। इस अवामी हुकूक के मसाइल में हम आपके शाना बशाना हैं। आज की ये तहरीक, अवामी तहरीक, ये तमाम मकातिब फिक्र की और तमाम मजहबी और सियासी जमातों की मुश्तरका तहरीक है। ये अलामती तहरीक है, लेकिन ये तहरीक यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम अपने हुकूक के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। हम यहाँ से मुजफ्फराबाद जाएंगे, राजा इफ्तिखार अयूब साहब आप हमारे साथ होंगे, राजा अरशद साहब आप हमारे साथ होंगे, खालिद महमूद साहब, फैसल आजाद साहब आप लोग हमारे साथ होंगे। जब तक हम सारे लोग मुश्तरक नहीं होते, हमारे मसाइल हल नहीं होते, हमें यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहेगा। अगर दो लोग मिलकर 10 किलोमीटर बशारत शहीद रोड के लिए वो सर जोड़ते हैं, मेरे गयूर नौजवानों और मेरे सियासी कायदीन, आप सर जोड़ के बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैंने गुज़श्ता कल भी लिखा और मुतअद्दिद अपने आर्टिकल में ये बात लिखी। मुझे राजा आसिफ अली खान के जाने के बाद ये बात आज भी याद आ रही है। राजा आसिफ अली खान वो हल्के की आवाम की बात किया करते थे, मसाइल की बात किया करते थे, उसके रास्ते में रुकावटें डालने वाले और रब के हुजूर मुजरिम हैं। अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? जिस शख्सियत ने हमेशा अवामी हुकूक की बात की, उनके अवामी हुकूक के मुतालबात में एक मुतालबा ये भी है कि इस हल्के में अगर सरदार अतीक साहब का असम्बली में जाना इतना ही जरूरी है और हमारे मसाइल से अदम दिलचस्पी है तमाम सियासी जमातों की, हम मुतअद्दिलिज़्म के कायल नहीं है। हमारे नबी का फरमान है, इस्लाम में असबियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ कबीले की बुनियाद पे कोई असबियत नहीं, बरादरी की बुनियाद पे कोई असबियत नहीं, लेकिन जो लोग हमारे इन मसाइल को असबियत का शिकार करके हमें नजरअंदाज करते हैं, हम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करते। और आज दिलकोट इस मुतालबा में ये मुतालबा करके जा रहा हूँ कि हमें अलग हल्का दिया जाए, हमें रंगला अलग तहसील दी जाए, ताकि हम मुस्तकिल जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए हमें जो है वो बार बार बाकी लोगों की तरफ देखना न पड़े, हमें रोडों के ऊपर ना आना पड़े। लोग अपने मसाइल वो बंद कमरों में बैठ के, वो ऐसी रूम में बैठ के हल करें और मेरे लोग वो तड़पते रहे, उन्हें डॉक्टर मुयस्सर नहीं है, कोई अच्छा टीचर मुयस्सर नहीं है, अपनी सियासी क़यादत के पास पहुंचे। अगर वो मसाइल हल नहीं करती, आप भी एहतजाज की कॉल दें, हम इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान वहीद फरूकी साहब। अब मैं मुख्तर वक्त के लिए जनाब राजा तौसीफ हासिफ एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा वो बहुत मुख्तर वक्त में अपने क़यादत करें। दबा सकते हो तो सदा दबाओ, दबा सकते हो तो सदा दबाओ, बुझा सकते हो तो दिया बुझाओ, सदा दबेगी तो महशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। रंगले के अजीम लोगों, मैं ये कहूँगा गरबी बाग अपर बंड के अजीम लोगों, आज आपके इस एहतजाज ने यह साबित किया है कि आप लोग अपने हुकूक की खातर अगट्ठे हैं। मैं बाकी लोगों को भी ये कहूँगा, उन्होंने भी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ना आ सके। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जिम्मेदार कारकुन उन्होंने किया अपने ही हुकूमत के खिलाफ आज मैं आप लोगों के साथ अवाम का बेटा बनकर, ऊपर बंद का बेटा बनकर इलाके की तामीर और तरक्की के लिए आपके बीच में खड़ा हूँ। लेकिन बहुत शुक्रिया जनाब तौसीफ हासिफ एडवोकेट। स्पीकर बंद हुई इलाके की तामीर और तरक्की के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं अपनी ही हुकूमत के खिलाफ इस एहतजाज में आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आपको भी आना चाहिए, लेकिन मैं जो बात अब कहना चाहता हूँ, मैं ये कहने पे कोई शर्म कोई यार महसूस नहीं करूंगा। यहाँ पर वजीर आजम साहब बंगला में आकर हमारे साथ वादे करके गए थे, उन्हें वो वादे पूरे करने चाहिए, लेकिन उन वादों में रुकावट कौन है ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। हमारे हल्के के एमएलए भी रुकावट है और हमारे हल्के के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर है वो भी रुकावट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, जो कहते थे कि सरदार अतीक अहमद खान एक सियासी रंडी, मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे थे, आज जाकर वो वहीं पर लेट गए। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि आप आए और लोगों को ये बताएं कि जिंदगी सारी आप लोगों के साथ या तो झूठ बोलते रहे हैं या अब झूठ बोल रहे हैं। आप अगर इनको सियासी रंडी कहते थे तो अब आप वहां क्या ढूंढने जा रहे हैं? इसमें कोई
कसूर हुकूमत का जरूर है, लेकिन इसमें कसूर मौजूदा MLA साहब का भी है, टिकट होल्डर साहब का भी है, सब लोगों का है। हमारे साथ ये वादा किया गया है कि वादा वफा होगा। अगर वादा वफा न हुआ तो मैं आप लोगों को फिर एक बार तकलीफ दूंगा। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बकाया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तौसीफ आसिफ एडवोकेट साहब। अब मैं बहुत मुख्तर वक्त के लिए राजा जाहिद एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 1 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा जाहिद एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीरकोट और रंगला के गयूर अवाम, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज जो बर्बाद एहतजाज की काल पर पहुंचे हैं, इस मुल्क में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सरदार तनवीर रियाज खान को कि आप सिर्फ बंगुल के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, आप सिर्फ जफराबाद के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, आप पुल्स के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, आप पूरे आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं। ये जो हालिया बजट में आपने अपर बेल्ट के साथ एहतसाब कर दिया है, इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस जबल में एक बात आखिरी जो मैं कहना चाहता हूँ, गुज़श्ता दिनों में जब ये इस हल्का की बिजली बंद हो गई थी तो मुझे याद है कि आवाम का समुंदर अपने हक लेने के लिए यहाँ से चमयाटी पहुंचा था और शाम से पहले बिजली बहाल हुई थी। हुकूमत वक्त को होश के दाखिल लेना चाहिए। अगर आवाम के हुकूक इसी तरह मुतासर होते रहे तो ये तो ट्रेलर है। इंशाअल्लाह अपर बेल्ट के एक एक बच्चा और एक एक बूढ़ा और जवान सारे निकलेंगे और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। अपने मुख्तर वक्त के लिए रिजवान काशिफ साहब सदर JKLF कोर्ट उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंगला के हुजूर अवाम, रंगला रिंगोली के हुजूर अवाम, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अवामी हकूक के मुतालबात के हक में आज यहाँ अलमती जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ किया। और हम अक्सर ये बात इसी मकबूल बख्श चौक तिरकोट से आज तक कहते आए कि लोगों आम अवाम को हम ये बात समझाने की कोशिश करते रहे, ये बात कहने की कोशिश करते रहे कि आपने दूध की रखवाली के ऊपर बिल्ले बैठाए हुए हैं। लोगों वक्त आ गया कि इन बिल्लों को, इन बिल्लियों को उठाकर पटकने से इनके बाप की ये रियासत नहीं है, ये अवाम की रियासत है। ये वसाइल अवाम के हुकूक पर जो भी ताकत डालते हैं, आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में जूते मारे इनको जो के ये दलाली करते हैं, ये मुजफ्फराबाद वालों से कॉम्प्रोमाइज करके आपके वोट की कीमत पर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप देख लें जितने भी सियासतदान हैं इल्ला माशाअल्लाह इस हल्के का जो MLA है, मैं हैरान हूं उसके ऊपर। वो इटली, जर्मनी और फ्रांस की बातें करता है और अभी तुम्हें इस बात का शौक है नहीं। गोलीगेर में कितने लोग मुश्किल में, रंगले में लोग मुश्किल में, रिंगोली में लोग मुश्किल में, न तालीम है, न सेहत है, न रोजगार है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तुम लोग यहाँ अवाम के वोटों पर अवाम के सर की कीमत लगाकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हो। यहाँ सिंगराबी साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी कश्मीरी कौम ने देख लिया। कल रात 12 बजे मुजफ्फराबाद में यजीदी लश्कर से जो लड़ाई हो रही थी हमारी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपको पता है अवामी हकूक की खातिर इंशाअल्लाह ताला हमारी जान देने की भी जरूरत पड़ी तो अपनी जान आपके हवाले करेंगे, लेकिन अवामी हकूक पर किसी टिकट को अब टाका नहीं मारने देंगे। आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा।
وہ بھی عوامی حقوق کے ریلیٹڈ ہے. وہ بات یہ ہے کہ 14 اسکیل سے کم جو لوگ کہیں اپائنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے تو تحصیل کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، لیکن ہمارے حلقے میں مالی بھی باغ یا رنگلا کوٹ سے بھرتی ہوتا ہے. کیا 2 لاکھ درکوٹ کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو جاب دی جائے، روزگار دیا جائے؟ یہ بات بھی عوامی حلقے کنسیڈر کرے. انشاءاللہ آج کے بعد زندہ رہے تو عزت سے، ورنہ نہ جیئیں گے نہ جینے دیں گے، مرنا پڑا ماریں گے، مرنا پڑا مریں گے. میں ان جذبات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے کہ اب ہمیں کسی سمندر سے کوئی بادل کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں دینا ہمیں ان تاریخ گلیوں پر کہ ہم نے سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. اور ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختوں کو عقابوں سے لڑانا ہے. بہت شکریہ جناب ذیشان کاشر صاحب. پھر کیا آپ ہمارے لیے مسائل کی جڑ بن گیا ہے. تو آج کے احتجاج کی وساطت سے میں ایس ڈی او ایئرپورٹ محکمہ برقیہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام سے ختم ہونے سے پہلے وہ یہاں تشریف لے آئیں. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو آج کے اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد پورا جلوس لے کر ان کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے. اس لیے ان سے پہلے ایک درخواست ہے کہ وہ یہاں آ جائیں ہمارے جلسے میں احتجاج میں شامل ہو کر ہم آپ نے اپنی بات رکھیں. اگر وہ نہیں آتے ہیں اس کے بعد اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی. اب میں جناب راجہ جمیل اکبر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ جمیل اکبر صاحب. اب کی بار ہم گلشن والے اپنا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شرکائے احتجاج جس کی قیادت ناب میرے بھائی راجہ یونس انقلابی صاحب کر رہے ہیں، محترم یونس انقلابی صاحب اور اس احتجاج میں شامل دیگر سیاسی کارکنان، میرے دوستو السلام علیکم. میں یونس انقلابی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج غربی باغ اپر بیلٹ کو نظر انداز ہونے پر ایک پہلا قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد اب یہ قدم رکیں گے نہیں بلکہ یہ قدم چلیں گے. میرے بھائیوں ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں. ہم جو شہرت شہید روڈ دی گئی جتنے بھی جدوجہد کرنے والے احباب ہیں پچھلے 5 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جدوجہد کر کے ڈنڈا دے کے تنویر الیاس اور ستار عتیق کو انہوں نے 10 کلومیٹر روڈ دیا ہے. ورنہ نہ ستار عتیق ان کو روڈ دیتا نہ تنویر الیاس دیتا. انہیں علم تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے اور انہوں نے میں مبارکباد سردار جاوید عارف عباسی اور ان کی دیگر ٹیم کو کہ جنہوں نے احتجاج کر کے یہاں اپنی سڑک لی. چونکہ یہاں غلط ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید اپر بیلٹ کے لوگ شارل شہید روڈ کے خلاف ہیں. نہیں واللہ شارل شہید روڈ ہماری روڈ ہے، اپر بیلٹ کی روڈ ہے. اس لیے کہ ہم نے اس پر ٹریولنگ کی ہے، ہم نے میٹنگوں میں جانا ہوتا ہے، فوتگیوں میں جانا ہوتا ہے، کہ عیادت کے لیے جانا ہوتا ہے، شادیوں میں جانا ہوتا ہے. تو یہ چلالا کی روڈ ہماری روڈ ہے. ہم وہاں احتجاج کرتے ہیں اور پچھلے 5 سال سے جدوجہد کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم اپنا رونا رو رہے ہیں. ہم اپر بیلٹ کے ساتھ یہاں جناب وزیر امور کشمیر پوری وہ جو شہد پیتا ہے وہ یہاں آیا اور اس وقت موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر کو رنگلا میں آئے اور انہوں نے رنگلا کے اندر آ کر جو وعدے کیے، رنگلا ڈگری کا کی بالی، رنگلا 20 مکلا روڈ، یہ اندرونہ بیلٹ چھپڑیاں گوڑی کے ٹو جہالا روڈ، اس کا یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور باقی جو روڈ ہے ان کے وعدے کیے تھے. ہم یہ کہتے ہیں وزیر اعظم اپنا وعدہ وفا کرو ورنہ غربی باغ کے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. کیونکہ آپ الیکشن کے دنوں کرتے ہیں لیکن یہاں الیکشن کے بعد آپ غربی باغ کا استحصال کرتے ہیں اور غربی باغ ایم ایل اے اس استحصال میں شریک جرم ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہاں لوگ باشعور ہوں، لوگ ان کے دہلیز پر انہیں سہولتیں ملیں کہ جب لوگوں کو ان کی دہلیز پر سہولتیں ملیں گی تو وہ ظاہر ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے. وہ چاہتے
میرے بھائیوں میں چونکہ میں کسی مرکز کا رہنے والا نہیں ہوں، میں ایک پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہوں، جتنا احساس مجھے ہو سکتا ہے کسی کو اتنا احساس ہو نہیں سکتا۔ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اور 40 کلو میٹر کی مسافت پر ارجا میں ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے۔ یہ درمیان اندرون پورے 40 کلو میٹر کے ایریے میں ایک ڈسپینسری تک نہیں ہے، ایک ڈسپینسری تک نہیں ہے۔ ہمیں ایک ڈسپلن کی گولی یہ 1000 روپیہ خرچ کر کے 1 روپے کی ڈسپلن کی گولی ہم 1000 روپے میں لے کر آتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی اسکول نہیں ہے، ہم بچوں کو ایک بچے کی شفٹ ہم 6000 روپے دیتے ہیں، جس آدمی کے 3 یا 4 بچے ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ 24-25 ہزار کی شفٹ کے دے سکتا ہے؟ ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ارجا بھیجنا پڑتا ہے۔ آپ پچھلے سال بھی احتجاج میں رہے، ہم کھڑے ہوں گے اور احتجاج کی وجہ سے میں ادا کرتا ہوں راجہ فاروق صاحب کا پر چھبڑیاں گوڑی کے روڈ 5 کلو میٹر دی ان لوگوں کی وہ مسائل میں کمی انہوں نے لائی۔ میں آئندہ میں جناب آنکھ چھوڑ کر کہوں گا افتخار ایوب صاحب آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں راجہ فیصل آزاد صاحب، راجہ مبشر اجاز صاحب، راجہ خاور قیوم صاحب، راجہ فہیم فاروق صاحب، توصیف آصف ایڈوکیٹ صاحب، راجہ خالد محمود صاحب اور سیکنڈ لینڈ کی جتنی لیڈرشپ ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ ہماری شروعات تھی، آئندہ ہماری خواہش مل کر پریس کانفرنس کریں اور آگے کا لائے عمل دیں انشاءاللہ۔ اگر جو آدمی ہمارے مشترکہ کاج کے لیے کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو آگے باشعور لوگوں یاد رکھنا وہی ہمارا غدار ہوگا، وہی سپرمنٹ کا غدار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے، ہم نے دیکھا کہ 96 میں پاکستان پیپل پارٹی والا ماجر سے جیت چکی تھی، لیکن یہاں سردار قیوم ناگزیر تھا اسمبلی میں اور اب سردار عتیق ناگزیر ہے اسمبلی میں۔ لے جاؤ اس کو اسمبلی میں، جناب عمران خان آپ لے جائیں، بلاول بھٹو صاحب آپ لے جائیں، نواز شریف صاحب آپ اسے اسمبلی میں لے جائیں۔ ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا حلقہ دو، ہمیں اپنا حق حلقہ دو تاکہ ہم اپنے حقوق کی ہم جنگ لڑ سکیں، ہم اپنے حقوق کی باغزاری کے لیے یہاں ہمارے مسائل حل ہوں۔ ہمارا ایک ہی حال ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے، آج میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپر بیلٹ کو نیا حلقہ دیا جائے۔ کیا آپ لوگ اس مطالبے کو عام کرتے ہیں؟ لہذا حکومت آزاد کشمیر سے میرا مطالبہ ہے، چیف الیکشن کمشنر سے میرا مطالبہ ہے کہ غربی باغ اپر بیلٹ نیا حلقہ دیا جائے اور ستارہ عتیق اور اس کے بسم اللہ سارے دن اسمبلی میں بیٹھایا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جمیل اکبر صاحب۔ اب آنے والے مقررین سے درخواست ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف 2 منٹ میں آپ پر بات حاصل کریں۔ اب میں اسی دوران انصر عباسی صاحب جہاں صافی تشریف لائی سوشل ایکٹیوسٹ، اور اس کے بعد اپنے راجہ بہت تشریف لائے، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فاروق ایوب صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان سے پہلے میں گزارش کروں گا راجہ عدیل انقلابی 1 منٹ میں اپنی بات ختم کریں۔ راجہ عدیل انقلابی صاحب یہاں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، میں سب سے پہلے یونس انقلابی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانے کے لیے انیشیٹو لیا۔ میں یہاں پہ اسٹیج پہ موجود سینئر لوگ رشید صاحب، عابد علی عابد صاحب، جمیل صاحب اور باقی جو اس کی کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا بہت ہو چکی، اب ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے۔ یہاں کوئی تصوف کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی برادری کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی علاقے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حقوق پامال کیے گئے، ہمیں 70 سال سے ہمیں ایک سبز بتی کے پیچھے لگایا گیا، ہمیں مختلف اسکیموں اور مختلف حربوں میں الجھایا گیا اور ہمیں اپنے حقوق یاد دلانے میں لینے میں ہمیں اس طرف لے جائے اپنے کے حقوق پوری طرح متاثر ہوئے۔ یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں،
चीज मिली है, उन लोगों ने जदोजहद की है, उनको मुबारक, उनको सौ मुबारकबाद। लेकिन बात यह है जहाँ हम बिरादरी की बात नहीं करते, जहाँ हम ऊपर बेल्ट लोअर बेल्ट की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं इस हल्के में की बुनियाद पे जो भी फंड आता है वो अमल फंड हो, वो हुकूमती फंड हो, हर सूरत दिया जाना चाहिए। हम कोई गुलाम नहीं है, हम कोई इलाका गैर में नहीं रहते, हम भी यहाँ के शहरी हैं, हम यहाँ की कम्युनिटी है, हमारे भी हुकूक है, चाहिए। अगर नहीं दोगे तो हम पे लेना चाहिए। यहाँ पे इबादत के साथ छपरे से हमारे दोस्त मौजूद, अगर यहाँ पर वर्ल्ड के लोग, अर्शद साहब आप सीनियर आदमी है, आपकी मैं जूनियर साहब आपकी क़यादत में मैं समझता हूँ आप स्टेप उठाए, जहाँ आप हुक्म करेंगे तो फैल साहब आप हुक्म करें, हम आपके पीछे शर्म चलेंगे। लेकिन तकरीरें बहुत हो चुकी, अभी बात के लिए अब नहीं चलेगी। अब करने की बात है। SDO मैं नकम्मा बेमान को यहाँ से दरियापुर किया जाए, वो दोबारा आन के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। तो अब इसी दौरान राजा इम्तियाज आजाद साहब तशरीफ लाए रमला से, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, उस दौरान मैं गुजारिश करूंगा आप मुख्तलिफ वक्त के लिए जनाब राजा तुफैल अजायब साहब से कि वो आप मुख्तलिफ वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। इंतहाई मुख्तसर वक्त है, काफ़ी टाइम बीत चुका, आपने बात सुन ली। मैं बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ राजा यूनुस इनकलाबी साहब और उनकी पूरी टीम को। जिस तरह से उस्मान वहीद फारूकी साहब ने कहा और इकबाल का शेर पढ़ा कि अगर मियसर न हो दहकान को रोजी उस पोशाए गंदम को जला दो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम भी है, मैं कोई लंबी बात आज करना भी नहीं चाहता। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं न दूंगा दर्स तुम्हें गंदम के जलाने का, मैं न दूंगा तुम्हें दर्स गंदम के जलाने का। फसल अगर बाकी हो तो तकसीम बदल सकती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हुकूक है ये अपर और लोअर बेल्ट के नहीं है, ये मुश्तरका तौर पर इंसानों के हुकूक है। और जब आपने बंटू में इन्हें तकसीम किया है तो याद रखो कि यहाँ पर जब तक हमें हुकूक नहीं मिलेंगे, रोड हमारा हक है, बिजली हमारा हक है, पानी हमारा हक है, तुम अपने बाप के घर से नहीं दे रहे हो, बराबरी पर तकसीम नहीं करोगे तो जूते मारे जाएंगे। यूनुस इनकलाबी साहब, ये तहरीक रंगला की भी है तो ये तहरीक यहाँ की भी है, और ये तहरीक हर मजलूम और मजबूर की भी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि तुम रंगला बाद में जाओगे, पहले दिलकोट की जमीन से जाओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे, क्योंकि हम तुम्हारा गिरबान यहीं पे पकड़ेंगे और हम आपके साथ मुकम्मल ताबत करेंगे। और रंगला के जितने भी हुकूक हैं वो हुकूक हल्का तिरकोट के हुकूक है, छपड़िया के हुकूक हल्का तिरकोट के हुकूक है। मुशारत शहर को रोड मिली, हमें भी खुशी हुई कि रोड मिली, लेकिन अगर हमें ये हक ना दिया गया तो हम किसी को भी कोई इंप्लॉयमेंट नहीं करने देंगे, तुम्हारे रास्ते रोकेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के पास आप कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम पूरी ताकत से ना सिर्फ ये कि रोड्स को बल्कि मुकम्मल तौर पे जितनी भी लिंक रोड्स को करने वाली मेन रोड्स हैं हम उन्हें बंद करेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं लोड शेडिंग का जो निजाम बाजार गर्म कर रखा है इस SDO ने, मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इस SDO ऐसा नाल और जिस तरह से SDO दिया गया ऐसी सारी एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है जो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो चापलूसों की तरफ इनके किरदार है। बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखें अमली तौर पे हल्का तिरकोट मुकम्मल मफलूज हो चुका है। यहाँ लीडरशिप खेलने की बजाय हमें आवाम को निकलना पड़ेगा। और याद रखें जिस दिन आवाम निकल गई लीडर आपके पीछे निकलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, आपने तैयारी पकड़नी है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। वमा अलैना। बहुत शुक्रिया जनाब तुफैल अजायब साहब। इसी दौरान राजा फैसल
फैसल आजाद साहब यहाँ हमारे एहतजाज में तशरीफ लाए, हम उनको यहाँ वार्मली खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनके साथ जो साथी आए हैं, अब्दुल इशफाक साहब और दीगर साथी, सबको खुश आमदीद कहते हैं। और मैं मुख्तलिफ वक्त के लिए जनाब राजा माजिद अनवर साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको यहाँ मतलब खुश आमदीद कहते हैं और अपने उनसे दरख्वास्त है कि इसे 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं ये प्रोग्राम मुनक्किद करवाने पर राजा यूनुस इनकलाबी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हालिया बजट में अपर बेल्ट के खिलाफ होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद की। और मैं चूंकि वक्त बहुत कम है, आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी ये राजा इफ्तिखार अयूब साहब, राजा फैसल आजाद साहब, या जितने भी जो लीडरशिप यहाँ पर गाजियाबाद में मौजूद है, अब आप सारे लोग एक ग्रैंड जिरगा का इनेकाद करें और तमाम इलाकों से सियासी कारकुनों को यहाँ पर तलब करें और एक बड़े जिरगे का एहतमाम करें जिसमें ये फैसला किया जाए कि ये जो जुल्म सितम हुआ है, मुझे कांडी बेल्ट से कोई सड़क उन्होंने लिया है, ये उनका हक था, उन्होंने कोशिश की। हमने सच्ची बात है उस तरह से कोशिश नहीं की जिस तरह उन लोगों ने कोशिश की। 10 किलोमीटर रोड उनको मिली, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें कोई जेलसी नहीं है इस मामले में, लेकिन मेजर लतीफ खलीक साहब ने, सरदार अतीक अहमद खान साहब ने, जो पूरे हल्के के लीडर हैं, जिन्हें पूरे हल्के से वोट मिले, उन्होंने जिस तासब का मुजाहिरा किया है, मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हम ऐलान बगावत करते और उनसे ये गुजारिश करते कि जनाब आपने ये जो तासब की फिजा यहाँ पे पैदा की है, इसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे मुस्तकबिल के करीब में। मैं अपनी तमाम लीडरशिप से गुजारिश करूंगा कि आप सारे लोग खुदारा आप इकट्ठे हो जाओ और एक ग्रैंड जिरगा कॉल करें, उसमें हम जो है वो लाएमत में आगे क्या करना है। आज का ये प्रोग्राम हो या फैसल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये मसाइल का हल नहीं है जब हम एक पेज पे जब तक हमने मुश्तरका कोशिश नहीं की है, उस वक्त तक हम जो है वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। मैं इसी पे जो है वो खत्म करता हूँ। आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत मेहरबानी जनाब। अब तो मैं मुख्तलिफ वक्त के लिए राजा अमर रियाज साहब सेक्रेटरी जनरल हैं ताजिर एसोसिएशन मंगला के, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस देश की माओं बहनों को अहिया के ले जा, जिस देश के गुंडे कातिल को अशरार छुड़ा के ले जा, जिस देश के हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मज़लूमों की, जिस देश के आदिल, जिस देश के हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मज़लूमों की, उस देश के रहने वालों को आवाज उठाना लाजिम है, उस देश के रहने वालों को आवाज उठाना लाजिम है। मेरे वाजिब एहतराम, सबसे पहले मैं जनाब राजा यूनुस इनकलाबी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आवाम के हुकूक के लिए तमाम लोगों को जमा किया और साथ में यूनुस इनकलाबी साहब आपको ये वादा करता हूँ, आपसे ये वादा करता हूँ, आपके इस मुख्तसर काल में आज अगर हम छोटे चंद नौजवानों को लेकर आए हैं और कल आने वाले मुस्तकबिल में जब भी आप हमें कॉल देंगे, तमाम के तमाम रंगला के तमाम लोगों को रोड पर खड़ा करके एहतजाज करूंगा और तमाम लोगों को, तमाम सियासी लीडरों को कि वहाँ पर हमारे इस कॉल पर जिस तरह ये वोट के दौरान हमारा तलवा चाटने के लिए वहाँ पर जाते हैं, इसी तरह ये हमारे तलवे चाटने के लिए वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कहा गया कि आज के बाद हमारी जो दूसरी कॉल होगी हम जफराबाद जाएंगे। मैं कहता हूँ और आप लोग इस पर इत्तेफाक करें, जिस तरह इलेक्शन में ये हमारे पास आते हैं, हमारा एहतजाज, हमारा धरना ऐसा होगा कि ये हमारे पास आएंगे, हम ऐसा एहतजाज करेंगे
یونس انقلاب صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں مختصر وقت کے لیے رفاقت کریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ کریں. ایک 2 منٹ میں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یونس انقلابی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں کئی جذبات والی باتیں ہوئی. میرے بھائیوں، ہم کو برادری کی جنگ لڑنے تو آئے نہیں، ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں. اور آپ کے حق کے لیے اہلیان دیرکوٹ، اہلیان کوہالہ، اہلیان ارجا سب آپ کے ساتھ ہیں. ظلم سب سے ہوا ہے، ایک آپ سے نہیں ہوا. یہ رملہ روڈ، یہ چھپڑیاں کوڑی کے روڈ، یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ ایک آپ کا مسئلہ نہیں، اس میں ایک آپ ہی سفر نہیں کرتے. اور آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہماری ہے. اور ہم اس بربنا اس بدبے کی وجہ سے کہتے ہیں اب تو سب نہیں. اور جو کاڈی والوں کو روڈ ملی، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہترین حکمت عملی، اور انہوں نے جذبے کے ساتھ، انہوں نے محنت کے ساتھ، انہوں نے اپنا حق لیا. ہمیں بھی ضرورت ہے ایسے جذبے کی، ہمیں بھی ضرورت ہے ایسے حق لینے کی طاقت کی. ہمیں تنقید کرنے کے لیے نہیں، ہمیں حق کے لیے لڑنا سیکھنا ہے. ہمیں ایک ہو کے روڈ پہ آنا ہے، ہمیں ایک ہو کر عواموں پر جانا ہے، ہمیں ایک ہو کر حکمت عملی کرنی ہے. ہم تو سب نہیں حق مانگتے ہیں اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے. وما الینا الا البلاغ. بہت شکریہ جناب. اب میں مختصر وقت کے لیے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ چونکہ ہمارا ٹائم بہت کم ہے، جو ہم نے کچھ طے کیا تھا، تو میں مقرر جو سارے قابل احترام ہیں، پیغام اپنا 1 منٹ میں دیں. بہت مہربانی. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے جو اس جگہ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہر کوئی ہمارے لیے قابل احترام ہے. بہت شکریہ. اب میں راجہ امتیاز آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ میں اپنی بات ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے احتجاج، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ تمام بھائیوں کی باتوں کو انڈوز کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ جو حالیہ بجٹ میں ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا، اور ہمارا اسی صورت میں ہمارا یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس بجٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی ہمارا مطالبہ 2 حلقوں میں، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ یہ سردار عتیق صاحب اور میجر عتیق صاحب انہوں نے مل کر ہماری جو ہے وہ ابتدا کر دی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ 2 حلقے ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ان پی ٹی آئی ہونے والے ہمارے برادری کے ٹھیکیدار ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا وہ کدھر گئے کہ اپنا صحیح پیغام جو حکومت وعدہ تک نہیں پہنچا سکے. ہماری آج جو ہے وہ بستروں پہ جو ہے وہ سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بہتر یہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہاں اس احتجاج میں شامل ہو جاتے. میں اپنا وقت فضل آزاد صاحب سے کو دیتا ہوں کہ وہ تفصیل سے بات کریں گے. واخر دعوانا بہت شکریہ راجہ امتیاز صاحب. اب میں مختصر وقت کے لیے ایک طویل جدوجہد کی داستان یا راجہ تسنیم اشرف جو اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ تسنیم اشرف صاحب بسم اللہ کے حوالے سے بڑی خدمات ہے جس کو ہم مختصراتی تاثیر پیش کریں. بہت شکریہ. تمام شرکائے محفل السلام علیکم. میں صرف 2 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا. افتخار ایوب صاحب سمیت جیسا کہ مدثر صاحب نے کہا کہ مسجد قائدین کو بات کرنے دی جائے، میں انہی کے سامنے چند بہت ہی مختصراً گزارشات اور تجاویز گوش گزار کروں گا. اور میں جو روایت سے ہٹ کے بات کروں گا آج، اور میں سب سے پہلے یونس انقلابی صاحب، کمانڈر مشتاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی عطا کرنے سے مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ آج کی جدوجہد نہیں ہے، ایک جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جو گزشتہ سال کشمیری امتحان میں کئی ماہ تک ایک طویل جو ہے دھرنا دیا گیا، اور اس سے قبل یہاں پہ چھپیاں گوڑی کیر اور اس لوئر بیلٹ کے جو لوگ ہیں چھپیاں گوڑی کیر کے حوالے سے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. خالی پچھلے 5 سال کے دوران 5 سے 6 دفعہ میں جو ہے اس حوالات میں گیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا بالخصوص افتخار ایوب صاحب آپ کی توجہ، آباد صاحب آپ کی توجہ، ارشد صاحب آپ کی توجہ، کہ جیسا کہ آج یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں، ایک طرف تو جیسے مسلم لیگ نون کے یہاں پہ قائدین ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین اور ان کے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو جماعت اسلامی کے کارکنان اور قائدین ہیں. یقیناً ان لوگوں نے اس حلقہ سے جو الیکشن لڑا
میں یہاں پہ بات کروں گا جو حالیہ واقعات رونما ہوئے، بالخصوص کانڈی بیلٹ کو جو روڈ دی گئی، جو میجر لطیف خلیق کا جو ڈیسیژن آیا، اور اس کے بعد جو دیگر جو معاملات ہوئے جس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا. میں کہنا یہ چاہوں گا افتخار ایوب صاحب اتمام حجت کے لیے، بالخصوص یہ درکوٹ کا جو راؤنڈ اباؤٹ ایریا ہے جہاں سے تقریباً 6000 ووٹ مسلم کانفرنس کو دیے گئے، اور اسی طریقے سے اپر بیلٹ سے اور میں برملا کہوں گا راجپوت بیلٹ سے 11000 کے قریب ووٹ دیے گئے. اور دوسرے نمبر پہ جو حکومت نمائندہ ہے جس کا نام میجر لطیف خلیق ہے، اس کو 7000-8000 کے قریب ووٹ دیے گئے. میں یہاں پہ کہنا یہ چاہوں گا یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو تو احتجاج کرنا ان کا حق بنتا ہے، پھر بلکہ میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ ان کے جو سینئر قائدین ہیں اس سے قبل جیسے یہاں پہ سرفراز صاحب نے استعفیٰ دیا، ہاں ہم نے میجر لطیف خلیق کو ووٹ دیا اور آخری سیکنڈ تک اس کا پیچھا کریں گے اپنا حق لینے کے لیے. میں کہنا یہ چاہوں گا 12000 ووٹ جو مسلم کانفرنس نے دیا اس کے ذمہ داران، اور جو 8000 ووٹ پی ٹی آئی کو دیا اس کے ذمہ داران، اور اسی طریقے سے جو یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہی فیصل آزاد صاحب ہیں، یہی ارشد صاحب ہیں، ان کے اوپر مشتمل جماعت اسلامی کو ملا کر ایک کمیٹی بنائی جائے اور اتمام حجت کے لیے میجر لطیف خلیق کو پکڑ کر سردار عتیق خان کے پاس اتمام حجت کے لیے جانا چاہیے. ہاں اگر ذاتی دشمنی ہے تو پھر میں کہنا چاہوں گا کہ میجر لطیف خلیق سے تعبیر کسی کی جدوجہد نہیں ہے. 1 مہینہ پہلے اس نے کہا یہ مسلم کانفرنس رنڈی کانفرنس ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کے لیے وہ وہاں پہ کیا اور وہاں سے جا کر لوگوں کے حقوق کے لیے ایک بڑا سڑک کا تحفہ لے کر آیا. اور میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں بھی ہم اگر لوگوں کے حقوق کے لیے سنسیئر ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کے لیے سنجیدہ ہیں، تو پھر جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں بالخصوص مسلم کانفرنس، بالخصوص جماعتی ہے پی ٹی آئی اور یہ اپوزیشن کے لوگ مل کر اتمام حجت کے لیے وہاں پہ جا کر وہاں پہ ہمیں سڑک ہمارے مطالبات ہمارے معاملات حل نہیں کیے جاتے تو پھر میں کہتا ہوں کسی لمبی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. افتخار ایوب صاحب ایک تو یہ ہوگا 70 سال کا آپریشن ہوگا اور پھر ایک 5-10 منٹ کی ویڈیو پیغام ہوگا. میں برملا اسٹیج چیف صادق سے کہوں گا کہ وہ نہ تو اپنی کھانا افورڈ کر سکے گا، نہ میجر لطیف خلیق افورڈ کر سکے گا، اور نہ اس مجمع میں موجود لوگ افورڈ کر سکیں گے. یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، غیر مؤثر ہو جائے گا، جہاں پھر یہ ادارے یہ معاملات نہیں باقی رہیں گے. آخر میں ایک بات کہوں گا، گزشتہ دنوں آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ ایل سوجر کے مقام پہ چند لوگوں نے سڑک کے اصول کے لیے آ کر بھوک ہڑتال کا کیمپ لگایا، ان کو گرفتار کیا گیا، مگر آپ نے دیکھا سوشل میڈیا میں 15 سے 20 ہزار وہاں کے لوگ اس چوک پر جمع ہو گئے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے، متفق علیہ عمل دینے کے حوالے سے، لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے سنجیدگی کرو، صاف صاف بات کرو. اگر نہیں کرو گے یہ پارٹی کھیل کھیلا جائے گا تو پھر جو ہے جہاں کسی کا نام و نشان نہیں رہے گا. میں اسی پہ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اب میں مختصر وقت کے لیے گزارش کروں گا جناب راجہ ارشد صاحب سے جو اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ ارشد صاحب سے کورٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے احتجاج آج یہاں محترم بھائی راجہ یونس انقلابی صاحب رنگلا سے اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک ٹوکن احتجاج کا اہتمام کیا. انہوں نے یہاں موجود راجہ افتخار ایوب صاحب، راجہ فیصل صاحب، دیگر سیاسی اور سماجی کارکن، اولاً تو میں آپ سب کو جو اس احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے علاقے کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے یہاں احتجاج کرنے دیرکوٹ آئے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں یہ نوجوان اپنے جذبات کے اندر اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو میں آپ نوجوانوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس حلقے کے اندر علاقوں کو، مختلف گاؤں کو، اس حلقے کے پورا حلقہ دیرکوٹ کو پس منظر رکھنے کے لیے جس طرح سے
जो साजिशें यहाँ के इक़्तिदार अवानों में बैठ के लोगों को तकसीम करके, लोगों को इलाकों के अंदर तकसीम करके, इस अवाम को बरादरियों के अंदर तकसीम करके, कभी कहा जाता है राजपूत बल, कहीं कहा जाता है अब्बासी बल। मुझे ये बताओ, यहाँ खड़े हुए नौजवानों, इस हल्का के अंदर सादात भी रहते हैं, कुरैशी भी रहते हैं, गुजर भी रहते हैं, सदन भी रहते हैं, और सिर्फ इलेक्शन में एक नारा दिया जाता है, कोई राजपूत बन के आ जाता है, कोई अब्बासी बन के आ जाता है। उन सनदकार बन के उन अवानों में उन लोगों को भेजने वाले, मैं समझता हूँ खुद मुजरम है इस सारी चीज के। हमें इस बात पे गौर करना होगा कि इस हल्का को पसमंदा रखने के लिए आज के अंदर, आज इस दौर में जहाँ दुनिया के अंदर ऐसी कोई तरीके नहीं है कि वहाँ कहा जाए कि हमें सड़क दी जाए, यहाँ कहा जाए कि हमें हॉस्पिटल दिया जाए, यहाँ कहा जाए कि हमें जो पानी का मसला हो, तालीम का मसला हो। मैं हैरान हूँ इस मौके पे अपर बल और लोअर बल पे तकसीम करने वाले वो गद्दार, इस हल्के के गद्दार जो है उनको पहचानो। आज आपने क्या दिया नाम, आप जाओ अपर बल के अंदर देखो, ये जो आवाम खड़ी है ये किस मुश्किल हालात में रहती है। आप यहाँ से नीमकोट से चलेंगे, चारा तक जाएंगे, यहाँ से मल्लोट, चूर, शकरपड़िया, पाठक, बदर, छपड़िया, पलासा, ये जो टाउन एरिया है पाकसर, यहाँ तक रोड पक्की नहीं है। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी ने, नाइंसाफी करने वालों का अंजाम आपने देख लिया है। वो महदूद हो गए आज यहाँ आके, आज बरादरियों के अंदर जाके बरादरीज़म का एक प्रचार कर रहे हैं, बरादरियों में लोगों को तकसीम कर रहे हैं। नौजवानों, आपसे कह रहा हूँ, अब्बासी हो या राजपूत हो, कि ये बात आपको जब तक समझनी नहीं आएगी तो आप हमेशा से तकसीम होते जाएंगे, आप हमेशा से इस्तेमाल होते जाएंगे, और चंद सरोकार जो है वो हमारा जो सौदा करते जाएंगे। आज इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ, यूनुस इकरामी साहब, मुझे आप पे नाज है इस बात पे कि आपने एक स्टेप उठाया। ये जो हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई जो बुजुर्ग यहाँ आए, टोकन एहतजाज किया उन्होंने, मैं आज ऐलान करता हूँ इस मौके पे, यहाँ मौजूद है जितने लोग, आपकी मौजूदगी में पहले सवाल करना चाहता हूँ उन पीटीआई के जो यहाँ जो राजा शुजात की जो आके हमारे पाँव पकड़ता था, पाँव पकड़ के उसे कहा कि हमें वोट दो। हमने कहा ये वोट हम ऐसे नहीं दे सकते, ये लोग मुनाफिक है, ये लोगों को तकसीम करते हैं, बरादरियों में तकसीम करते हैं, इलाकों में तकसीम करके अपना मुफाद हासिल करते हैं। आज पूछना चाहता हूं मैं, राजा फाहिम फारूक आप कहो, आपने वोट दिलवाए, राजा शिराज कहा, राजा मसूद आपसे सवाल करता हूं, आप पीटीआई के जो हुकूमत के अंदर मौजूद है, मैं उस पिछली हुकूमत के अंदर ये फैसला आज खड़े हैं, इनको याद होगा, यहाँ माजिद अनवर है, यहाँ छपने से हमने बगावत की थी फारूक अदर के खिलाफ। हमने कहा था जाके कि ये जुल्म मत करो, ये लोग पसंदगी देख लो भाई। आपने यहाँ वो इस इलाके को जो मुस्तरद किया, इश्तिहार अयूब साहब बैठे हैं, यहाँ लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी कि जी फंड सारा एक को दिए जाए, उनके पास भी फंड है, बरादरी की बुनियाद पे उन्हें तकसीम की। मैं आज कोई बरादरियों की बुनियाद पे बात नहीं करता, आपसे ये कहना चाहता हूँ, उनको समझो जो पहासियों आपको, राजपूतों आपको तकसीम करके आपका नाम लेके, इस हल्के में और बरादरी नहीं है क्या? सिर्फ राजपूत आवासी है क्या? ये इलाके के अंदर लोग इंसान नहीं रहते? यहाँ से इधर छपरे की तरफ जाओ तो क्या आप वहाँ से 5,000 या 6,000 से आगे गाड़ी आती है, ये छपरियाँ है, सारे साथ है कोड़ी के। ये इस जुल्म के खिलाफ बगावत करेंगे।
मैं इस मौके पे ऐलान करता हूँ आज यूनुस इनकलाबी साहब, माजिद साहब, आपको कहना चाहता हूँ, आपको अपने आप ठीक करना पड़ेगा। ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, आपको अपनी टांगों में जान डालनी पड़ेगी। हम आप आगे गोली खाने के लिए फ्रंट लाइन पे हम मौजूद होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज से ये जो नौजवान खड़े हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा रहा मस्जिद का शिकार ना हो, लोगों के कहने पे मस्जिद का शिकार ना हो। आपसे आज कहना चाहता हूँ, चाहे आज से मुहिम शुरू करें, यूनुस इनकलाबी साहब, फैसल अहमद साहब, राजा इफ्तिखार अय्यूब साहब, हम आपको ये वादा करते हैं, आप बाहर आए, ये आवाम की नुमाइंदगी करें, इस आवाम को बाहर निकालें, यहाँ से गोली निकला लेके वाला की तरफ जाएंगे, वाला भी बंद करेंगे, सफरबाद भी बंद करेंगे, ये सारी रोडें बंद करके लोगों, आपसे कहना चाहता हूँ, आपको निकलना पड़ेगा। गोली हम खाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको बाद में गोली लगेगी, राजा अरशद को पहले गोली लगेगी आपके हकूक के लिए। ये मैं अल्लाह के सामने वादा करता हूँ आपसे। लेकिन ये तकरीरें करके यहाँ के हम तकरीरों के लिए बहुत लंबी तफसील में चला जाते हैं, नहीं होनी चाहिए। हमें पहले अपना डिसिप्लिन कायम करना होगा, आगे बाहर निकल के आज से ऐलान बगावत करें। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ एक बात, कि यहाँ के हर शख्स, हर पार्टी के लोगों ने दिल में ये सोचा था, दिल के अंदर ये एहसास किया था कि तनवीर इलियास बन जाए तो अच्छा है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश थी कि तनवीर इलियास शायद वज़ीर बन जाए। ये जो सरकारी डीजल खर्चे पे चलने वाले सियासतदान, इनका रास्ता रुकेगा। लेकिन अफसोस, तनवीर इलियास, तुम उस उन्हीं के कहने में आके, उन्हीं की गोद में बैठ के, उन्हीं के फैसलों पे चल के इस अवाम का इस्तेसाल कर रहे हो। उनका अंजाम देख लो कहाँ पहुंच गए वो लोग। आप तो आपने नाम घुमाना था, नाम घुमा लिया, लेकिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले कश्मीरी हमारे लोग उनके हकूक के लिए आखिरी दम तक जाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस मौके पे जो नौजवान खड़े हैं, मैं एक बात महकमा बरकिया आपसे कहना चाहते हैं, आज रात को 11 से लेकर 3 बजे तक आपने दीन कौर की बिजली बंद रखी, पूरे हफ्ते के अंदर आपने लोडशेडिंग रखी हुई है, मतलब फिर तुक्की, जिसका कोई शेड्यूल नहीं है। याद रखो, आज से हम ये ताजर मौजूद है यहाँ, आज शाम को हमारी मीटिंग भी है, वही काम करेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन बंद करेंगे हम पाकिस्तान में जाने वाली, पहले हमारी मुल्क को, फिर जो उसके आगे करेंगे हम इस ट्रांसमिशन लाइन को बंद करेंगे। याद रखो, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, आपने वादा किया था कि आइंदा के बाद यहाँ के हमलात नहीं होंगे, लेकिन अभी हम शाम को बैठ रहे हैं ये ताजरों के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ, और उसी तरह छपटिया वालों आपको भी पैदल निकलना होगा, रंगले वालों आपको भी निकलना होगा, आज चौकी वालों आपको निकलना पड़ेगा, तालती यार्ड वालों आपको निकलना पड़ेगा, भागसर वालों, पानी वालों, शकरपटिया वालों, पत्थर पुलिस वालों, आपको भी बाहर आना पड़ेगा। आओ फिर यहाँ से ठोके, यहाँ से पैदल मार्च करके वाला पल को बंद करेंगे जब तक हमारे हकूक नहीं मिले। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अरशद साहब। अब मुख्तलिफ वक्त के लिए राजा फारूक अय्यूब साहब, जो अमीर जमात इस्लामी यूनिवर्सिटी से रंगला, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, मैं मुअज़्ज़ज़ क़ाइदीन, तमाम जमातों के आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस एहतजाज, अलामती एहतजाज जो अपर बेल्ट के लोगों ने, जिनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, इस एहतियाती हुकूमत ने जुल्म किया, और पहले भी लोगों को हम बताते रहे कि देखते जाएं कि गंडापुर साहब यहाँ से जो इधर तशरीफ ले आए हैं ये गायब हो जाएंगे, और आपने देखा ये सब गायब हो गए। रंगला कॉलेज की बात हो रही थी, रंगला रोड की बात हो रही थी, और इसी तरह से छोटी जो रोडें हैं वहाँ पर
उनका भी वहाँ पर तज़किरा हो रहा था, और वहाँ से इस इत्तेहादी हुकूमत को मिला जुला के 21,000 वोट जो है मिला, और फिर हमें आज यहाँ पे एहतजाज करना पड़ा। एहतजाज के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ, ये अलामती एहतजाज है, और इसके बाद बहुत बड़ा एहतजाज होगा जो किसी गवर्नमेंट और किसी जो है इंतजामिया के बस में उसको रोका नहीं जा सकेगा। इसके साथ साथ मैं अब सबसे पूछता हूँ कि आपको यहाँ पर महकमा बरकिया नजर आ रहा है, जैसे आपके हमारे यहाँ जो बिजली का जो निज़ाम है, आप अपने बिलों को देखें, आप अपने जो बाकी जो उनका निज़ाम है उसको आप देख लें, बिल्कुल ढंग का निज़ाम है, और उनके खिलाफ भी एहतजाज है। और चूंकि इस वक्त टाइम इतना नहीं रहा है, हम सब अलामती एहतजाज के साथ साथ फिर जो इंतबाह कर रहे हैं कि हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दें, वरना हम मुश्किलात पैदा कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। इब्रार अहमद जियाद साहब आईनी सेक्रेटरी जनरल JJKPP यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुजारिश भी करूँगा कि वो मुख्तर वक्त के लिए तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इज़हार करें। यहाँ मौजूद है जनाब इब्रार अहमद जियाद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही किस्से है वही बात पुरानी अपनी, वही किस्से है वही बात पुरानी अपनी, कौन सुनता है भला राम कहानी अपनी। चलो के दुश्मनों से गमे दिल का मदावा मांगे, चलो के दुश्मनों से गमे दिल का मदावा मांगे, दोस्तों ने तो कोई बात न मानी अपनी। चूंकि ये अलामती एहतजाज भी है और ये किसी ने इसको टोकन एहतजाज भी कहा है, तो मैं भी टोकन बात ही करूंगा। मैं तनसीम अशरफ राजा की वीडियो की बात के अलावा सब बात जो है उसको मैं ऑन करता हूँ, और राजा अरशद साहब की बगावत के अलावा सब बात को मैं ऑन करता हूँ कि यही असल बातें हैं जो तनसीम अशरफ साहब ने कही और राजा अरशद साहब ने कही। और अफसोस ये होता है कि आज हम 222 में मौजूद हैं। सड़कों का एहतजाज है, बिजली का एहतजाज है, स्कूलों का एहतजाज है, और वो तमाम बुनियादी सहूलतें, वो तमाम फैसिलिटीज जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, उन सारी बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स है पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमत के जिम्मा होता है, उनके लिए हम आज सरापा एहतजाज है। हम खुद भी शर्मिंदा हो रहे हैं और इस पे रियासत के हुक्मरानों को, वो आज के हुक्मरानों, वो इससे पहले के हुक्मरानों, उन सबको शर्मिंदा होना चाहिए। और ये जो कहीं बंटवारे की बातें अपर और लोअर की, ऐसा नहीं है, और हल्के की तकसीम का भी नहीं है। हम ये भी नहीं मानते, हम मुकाबला करना जानते हैं, हम खड़ा रहना जानते हैं। हम गर्म सरद में इस पब्लिक का जो सैकी हुई पब्लिक है, जो मजलूम पब्लिक है, जो मगलूब पब्लिक है, जो बेबस, बेसहारा और बेतमान पब्लिक है, मैं इस हल्के के हवाले से आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो नुमाइंदा लोग आज PTI के जो सदर है राजा इम्तियाज एडवोकेट, वो तो दर फिर रहे थे वोट मांगने के लिए। हुकूमत बनी लेकिन वो गायब है। मैं उन सारे नुमाइंदा लोगों को जो सड़कों की बुनियाद पर, जो स्कूलों की बुनियाद पर, जो कबीलों इलाकों की बुनियाद पर वोट मांगते और इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को किया करते थे, वो हमें दस्तयाब नहीं है। बड़े कहते हैं कि ये सारे रास्ते जो है वो पेट से गुजरते। मैं ये जो इलाका इस तरफ को आपके सामने है, ये रंगला, मल्लोट और इसका निचला इलाका, ये गरबी बाग का पेट है। आपके इलेक्शन, आपकी जीत, आपकी हार इस पेट के जरिए होती है। उस वक्त तो आप लोगों के पांव पड़ते हो, आप लोगों के घर घर जाते हो, आप वास्ते देते हो, आप थोड़ियां पकड़ते हो, आप टोपियां फेंकते हो, लेकिन जब कभी तकलीफ में ये लोग गुजरते हैं तो
آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا، ان بے زبانوں کو، ان کمزوروں کا؟ میں آخر میں بس اتنا ہی کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو پرشکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم گلاب ہے، یہ ہے داستان میرے عہد کی، جہاں ظلمتوں کا نصاب ہے، جہاں حکمرانی ہو جھوٹ کی، جہاں ترجمانی ہو لوٹ کی، جہاں بات کرنا محال ہو وہاں کہیں بھی عذاب ہے۔ میری جان اب تو یہ لب کھول تو، کبھی اپنے حق میں بھی بول تو، عجب ہے تیری خاموشی، نہ سوال ہے نہ جواب ہے۔ وہی آب ہے آپ نے، وہی خار ہے راہ گزر، وہی دشت سراب ہے، وہی بام و در ہے جلے ہوئے، وہی چاند چہرے ڈلے ہوئے، وہی صبح کوئے ملال ہے، وہی شام شہر خراب ہے۔ میری زندگی بھی عذاب ہے، تیری زندگی بھی عذاب ہے، تیری زندگی بھی عذاب ہے، تیری زندگی بھی عذاب ہے۔ برادر مجاب صاحب، اب میں راجہ نواز صاحب سے گزارش کروں گا، مسلم لیگ کے مرکزی رہنما جناب راجہ نواز صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، صرف 2 منٹ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ راجہ یونس انقلابی صاحب آپ کو سلام ہو، راجہ افتخار ایوب صاحب، راجہ فیصل آزاد صاحب، راجہ ارشد صاحب، دیگر قائدین مختلف پولیٹیکل پارٹیز، رنگلا کے عوام، آپ کو بہت مبارک ہو۔ یونس انقلابی صاحب، رنگلا کے حوالے سے رنگلا کی یہ تاریخ رہی ہے۔ راجہ افتخار صاحب، جب بھی رنگلا سے کسی تحریک کا آغاز ہوا تو مظفر آباد کے ایوان ہل جایا کرتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں رنگلا، چھپڑیاں، گوڑی کیر کے لوگوں کہ آپ نے جب کبھی بھی احتجاج کی تحریک کا آغاز کیا، آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یونس انقلابی اور اس کے ساتھیوں کو سمجھتا تھا، جس موقع پہ ہم نے چھپڑیاں روڈ کے لیے تحریک کی اس میں تنظیم اشرف بھی موجود تھے، پارٹیکولرلی یونس انقلابی کا بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ ہم نے جب اس روڈ کی تحریک کا آغاز کیا، اس تحریک کو جب ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یونس انقلابی کا بڑا کردار تھا۔ اور آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یونس انقلابی نے جب حلقہ غربی باغ کی پسماندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بجٹ کے اندر جو زیادتی ہوئی، جس کو اپر بیلٹ کا نام دیا گیا، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کوئی بیلٹ کی بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیٹ کلاس اور مظلوم اور محکوم طبقے کی جنگ ہے۔ مظلوم اور محکوم جو طبقہ ہے ان کے حقوق میں ڈاکہ زنی کی گئی، وہ ہاں لوئر بیلٹ سے ہو خواہ اپر بیلٹ سے ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں، آپ کو اپنے حقوق کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یونس انقلابی، راجہ افتخار ایوب، راجہ مبشر اعجاز، راجہ خوار قیوم اور ان لوگوں کی بیک پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے قائدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائدین محترم، اب آپ آپس میں جو آپ کے ڈسٹینسز ہیں، راجہ فیصل آزاد صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو ڈسٹینسز ہیں ان کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ، جس طرح پاکستان کے اندر پی ٹی ایم نے ایک تحریک کا آغاز کر کے اس ملک سے ایک ملعون کی حکومت کا خاتمہ کیا، اسی طرح آپ کو بھی ہاں حلقہ غربی باغ کی سطح پہ آپ دیکھیں کہ اگر گزشتہ 72 سال کے عرصہ میں یہاں آپ اس حلقے کا سٹیٹس کو نہیں چینج کر سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس حلقے کے حقوق کی بات کرنا پڑے گی۔ پھر افسر صاحب آپ کے اسکولوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آپ کی روڈوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آپ کے کالج بھی نوٹیفائڈ ہوں گے، ہماری روڈیں بھی بنے گی، ہمارے ہاسپٹل بھی بنیں گے۔ لیکن جب تک آپ اس حلقے کا سٹیٹس کو نہیں چینج کرتے، اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس حلقے کے اندر کوئی بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں اس موقع پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا کہ انہوں نے ہماری اس تحریک کو ریسپانس کرتے ہوئے، جناب افتخار ایوب صاحب
आपकी वसादत से फैसल आजाद साहब, आप लोग मुस्लिम लीग की क़यादत थी, आपकी वसादत से 5 किलोमीटर रोड हमारी बनाई और उससे आगे 5 किलोमीटर रोड यूनुस इनकलाबी साहब हमारी मजीद जो कच्ची है। आपके डिग्री कॉलेज का मसला है, आपकी रंगला रोड की रिकंडीशनिंग का मसला है, दीरकोट हॉस्पिटल में स्टाफ का मसला है, रंगला और एससी में स्टाफ का मसला है। मैं इन तमाम मसाइल को इंडोर्स करते हुए अपनी क़यादत से ये कहूंगा कि आप यकजान हो गए, आप अपनी जुदोजहद को आवाज करें। ये आवाम दामन दरमन सुख में आपके साथ खड़ी होगी। हमारे बहुत शुक्रिया जनाब राजा नवाज साहब। अब मैं 1 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा राजा आकिब जावेद से कि वो अपने मुख्तसर वक्त में अपने ख्याल का इज़हार करें, सिर्फ 1 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यूनुस इनकलाबी साहब और उनके काफिले को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने यहाँ पर एक प्लेटफार्म मुहैया किया लोगों को कि वो आए। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर फैसल आजाद साहब भी खड़े हैं, यहाँ पर तमाम यहाँ पे जो अपोजिशन जमात है उनके लोग खड़े किए हुए हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, जिस टाइम आप लोग इलेक्शंस का टाइम था उस टाइम यहाँ पे आपको राय भी दी गई कि यार आप मुत्तफिका तौर पर एक उम्मीदवार खड़े हो, आप एक उम्मीदवार खड़े हो, आप एक उम्मीदवार क्यों नहीं आए यहाँ पर? आपने क्यों यहाँ पे पार्टी का खेल रचाया? यहाँ पर सारे आए, इन्होंने आके कहा जी कि मेजर साहब का वोट है। मैंने उस टाइम कहा, जिस टाइम से होश संभाला, जिस टाइम से इस ग्राउंड की पॉलिटिक्स को समझा, मैंने कहा मेजर साहब और अतीक साहब दोनों आपस में टाइज है, ये आप लोगों को कभी भी आगे नहीं आने देंगे। और ये बात आप सब भी बेहतर से तरीके जानते हैं किस वजह से टाइज हैं, कौन इनको लाता है। मैं इस पे जगह पे ये इस चीज को अनाउंस नहीं करना चाहता। फिर आज मैं और इनकलाबी साहब यहाँ बैठे हुए थे होटल में, एक हमें बरादरी के ठेकेदार से बात हुई। बरादरी के ठेकेदार साहब हमें कहते हैं, मैं उनको मैंने कहा मैं चौक पे जवाब दूंगा, चौक पे आपको जवाब दे रहा हूं। आपने वहां पे कहा कि अगर आपने हुकूक लेने हैं तो आप मेजर लतीफ की तरह अतीक साहब के पास जाए। तो हमने कहा क्या हम भी आप मुर्शिद के पास हैं आपके? नहीं, हम आपके गुलाम नहीं है। ये जो आप यहाँ पे नॉमिनेट हुए, ये लोगों के वोटों से नॉमिनेट हुए, ये आपका काम है, ये आप अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये आप हमारे टैक्सों से लेके आप चीजें दे रहे हैं। यहाँ पर इस टाइम मौजूदा हुकूमत है जनाब जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम, जबकि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रोटोकॉल देखें उनका। यहाँ पर अवाम भूखमरी है, अवाम के पास वसाइल नहीं है, अवाम के पास तालीम नहीं है, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी जा रही है 3-3 करोड़ रुपए की, वहाँ पे 10 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। और मुझे बताएं 10 करोड़ रुपए में यहाँ पर एक आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी आ सकती है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ सकती है। उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपके कई नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं और अर्निंग वाली एजुकेशन कमा सकते हैं कि जिसमें उनका मुस्तकबिल भी सिक्योर हो। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर बिजली का मसला है, तो उसमें मुझे एक शेर याद आया, दीप जो मोहल्लात में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर जले, वो जो साहिब के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फिर आखिरी बात ये बात थी बिजली के हवाले से, हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम कोई लावारिस लोग हैं, और यकीनन ऐसे ही है कि हम ऐसे ही लगता है कि लावारिस लोग हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जमात हैं, अपोजिशन जमात हैं। आज फैसल आजाद साहब ने हिम्मत की, आगे आए अरशद साहब आए, यूनुस इनकलाबी साहब, आपका तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपको इस सारी चीज़ का कि बिजली के मसाइल में भी अब यहाँ पे जैसे कि आपने टाइम दिया था उनको कि अगर यहाँ पर नहीं आते तो हम यहाँ पे मार्च करेंगे। तो अब मैं आपसे गुजारिश है कि मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। यार हमें हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक से फैसिलिटेट किया जाए, हम इंसान हैं यहाँ पर, और जो सुन रहे हैं सब आप भी इंसान हैं। ये भेड़ चाल बंद किया जाए, हमारे हुकूक के साथ न डाका डाला जाए। इन नौजवानों के लिए जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसको हल करें। अब क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अपने प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। वक्त की कमी की वजह से मैं इजाजत चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया आकिब जावेद। अब मैं सर वक्त के लिए गुजारिश करूंगा साबिक उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा जनाब राजा फैसल आज़ाद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा फैसल आज़ाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यूनुस इनकलाबी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस हलका के अंदर जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, और इस बजट के अंदर भी इस तरह ये पूरा हल्का नज़रअंदाज हो रहा है। इनने एहतजाज की काल देकर पहली ईंट रखी है और इंशाअल्लाह ताला यूनुस इनकलाबी साहब, आप और आप जैसे जो दीगर नौजवान हैं जो हमेशा कोर्ट के अंदर जब भी कोई लोगों के हकूक की बात होती है तो आप खड़े रहते हैं। वो राजा अरशद साहब हूँ, यूनुस इनकलाबी साहब आप हूँ, राजा नवाज साहब आप हूँ, इंशाअल्लाह ताला लोगों के हकूक के लिए जब भी आप खड़े होंगे हमें अपनी पुष्ट पर पाएंगे आप। मैंने जब यूनुस इनकलाबी साहब मुझे परसों मिले तो मैंने भी इस हल्का के मसाइल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी थी 11 बजे। तो यूनुस इनकलाबी साहब ने कहा कि मैंने एहतजाज रखा हुआ है, तो मैंने कहा आपका एहतजाज खत्म होगा तो उसके बाद हम अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपनी जो बात है वो रखेंगे। यूनुस इनकलाबी साहब, रंगला रोड हो, रंगला का डिग्री कॉलेज हो, घोड़ी केर छपड़ियाँ रोड हो, कन्याटी सेर रोड हो, चमनकोट सालियाँ रोड हो, कोई भी इस हल्का के अंदर जिस तरफ आप जाएंगे मसाइल ही मसाइल हैं। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अस्पतालों के अंदर स्टाफ नहीं है और पूरा जो हल्का है वो मसाइल बना हुआ है। मैं कांडी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें 10 किलोमीटर रोड मिली, 18 किलोमीटर रोड पिछली हुकूमत के अंदर उन्हें मिली। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ के लोग नीचे वाले बेल्ट के हों या अपर बेल्ट के लोग हों, ये सब मजलूम लोग हैं और इनके जो जज्बात हैं उन पर जा सियासत की जाती रही। मैंने इलेक्शन के दौरान ये कहा कि मेजर लतीफ, पीटीआई जो है, पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन उस वक्त हमारे बाज लोगों ने हमारी इस बात पर तवज्जो नहीं दी। तो चूंकि बहुत वक्त से लोग यहाँ पर खड़े हैं, यूनुस इनकलाबी साहब, राजा अरशद साहब और दीगर जो नौजवान हैं यहाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके हकूक के लिए, आपके मसाइल के हल के लिए हम हर वक्त जब आप हमें हुक्म करेंगे हम आपके पीछे खड़े होंगे, आप हमारी क़यादत करेंगे। मैं बाकी जो बातें हैं इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के बाद हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली वहाँ पर बात रखेंगे। एक बार फिर यूनुस इनकलाबी साहब क्योंकि हमारी सियासी जद्दोजहद के साथी हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये जो स्टेप लिया है, ये जो आपने स्टेप लिया है, इंशाअल्लाह ताला हम सब का ये फर्ज है कि इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अब हम इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो आज के शुक्रिया अदा करने के लिए राजा यूनुस इनकलाबी साहब को दोबारा दावत दूंगा कि वो आज के इस इज्तिमा से मेहमानों का, दीगर कारकुनों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माजरत के साथ दोबारा स्टेज पे इसलिए आया कि कुछ कायदीन मुख्तलिफ जमातों के बाद में यहाँ तशरीफ़ लाए, कुछ का पहले से शुक्रिया अदा हो चुका था। मैं इस मौके पर यहाँ पर मौजूद राजा इफ्तिखार अय्यूब साहब, फैसल आज़ाद साहब और जो कायदीन हैं मुख्तलिफ जमातों के, इब्राहिम याद साहब, जमील साहब, जितने भी लोग हैं सबके नाम लूँ का तो वक्त ज़्यादा होगा। और रिंगोली से लोग आए, उन सब का शुक्रिया। रंगला से आए, मल्लोड से आए, छपड़ियाँ गोड़ीगेर से आए, एल से अफराज अब्बासी ख़ुद नहीं आए, उनके दोस्त आए, नवाज साहब आए, और जो सबसे बढ़कर वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के मेरे अजीज़ जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ आज एहतजाज के लिए मुफ्त मुहैया की, मैं उनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इसलिए नहीं कि इस वजह से, बल्कि उन्होंने आज पूरा दिन ज़ाया करके अपने हक़ के लिए निकले। वहाँ के जो ताज हज़रात हैं, राजा एजाज नज़ीर साहब शायद आए हैं या नहीं, एजाज नज़ीर साहब आए मौजूद हैं, इनका शुक्रिया कि ताजर यूनियन रंगला ने हमारा भरपूर साथ दिया। मैं सिर्फ 2 मिनट में बात करके इसके बाद इफ्तिखार अय्यूब साहब ने बात करनी है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पहले वजाहत हो चुकी फाजिल आज़ाद साहब ने और दूसरे में कर रही अरशद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ पे जो हम आज एहतजाज के लिए आए हैं उसके जो बुनियादी एक दो मकासद हैं, कोई ज़्यादा लंबी बात भी नहीं है कि मशार शही रोड 10 किलोमीटर हुई तो मैंने पहले कहा था कि उन लोगों का हक था, उन्होंने जदोजहद करके ये रोड हासिल की। कोई ऐसे ही फ्लैट में उनको बुजुर्गों, मैं अपने भाइयों हम जो यहाँ स्टेक होल्डर हैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे राहबर हैं, आप हमारे वो लीडर हैं, हम तो कारकुन हैं, हम तो नारे लगाने वाले लोग हैं, हम तो बस्ते उठाने वाले लोग हैं, हम तो चोरों चौकों पे खड़े होकर लीडरों के नारे लगाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब मुजफ्फराबाद के उस अवान में यहाँ का बजट पेश किया गया, यहाँ पे बेल्टों की बात की गई, राजपूत बेल्ट और आवासी बेल्ट, मैं इसको कंडेम करता हूँ। कोई आवासी नहीं, कोई राजपूत नहीं, हम बराबरी की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। यहाँ पे मुबश्शिर एजाज साहब को होना चाहिए था, लेकिन वो अपने उनके बेटे का ऑपरेशन था, खाबर कईम साहब के वाले साहब के आज ऑपरेशन है, चाचा कईम वाला उनको सेहत है, इस तरह से और बहुत से ऐसी लोग हैं वो सारे यहाँ होते। अफराज अब्बासी साहब यहाँ होते, तारिक अब्बासी साहब ने अभी फोन किया वो मीरपुर में। हमारा अब्बासी राजपूत का मसला नहीं, हमारा ऊपर बैठ नीचे बैठ का मसला नहीं, यहाँ को तबकाती जंग की है, यहाँ एक मसलूम तबका है जिसमें हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोग सियासत कर रहे हैं, और एक वो बेचारों वाला एहलका है जो बेचारों में बैठकर ऊपर जाकर अपनी बात को तय करते हैं, अपने मामलात को तय करते हैं। एक बात छपियां घोड़ी गेट की रोड हो, मल्लोट रंगला की रोड हो, कस्बकोट की रोड हो, हिल सालियों की रोड हो, कच्चा जाला की रोड हो, और जो रोड है डिग्री कॉलेज का मसला हो, रंगला हॉस्पिटल का मसला हो, धीरकोट हॉस्पिटल का मसला हो, सारे मसाइल हमारे अपने जाती मसाइल है। और हम ये ऐलान करना चाहते हैं इन नौजवानों की वसातत से, मैं किसी नौजवान का नाम आज नहीं लूंगा जो हमारे साथ आए, क्योंकि मैं समझता हूं कभी एक का नाम लिया तो जो सुबह से काम कर रहे हैं किसी का नाम रह गया तो वकीले पड़ जाते हैं। आप हमारे सर के ताज हैं, हम आपसे वादा करके इस चौक से जा रहे हैं। अल्लाह ताला को नाज़र जानकर जब भी आप नौजवानों ने हुक्म दिया कि हमारी जान की जरूरत पड़ी, आपके लिए जान का नजराना देंगे, हमारा खून चाहिए, खून देंगे, सड़क पर खड़े होंगे। अब एक बात माजरत के साथ स्टेज से होकर कहना चाहता हूं, अब हम इतनी ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, इतनी वेट नहीं करेंगे, किसी को रिक्वेस्ट करके मसाइल के हल के लिए रोडों पर नहीं लाएंगे, बल्कि उन कारकुनों से कहेंगे, उन मुतवस्सित तबके के कारकुनों से कहेंगे, आए सरों पे कफन बांधे, वही काम करे जो कौड़ी वालों ने किया है, कि कोयला पुल बंद करके उन्होंने अपनी 10 किलोमीटर रोड हासिल की। मेरे नौजवान साथियों, ये लोग, किसी ने यह कहा कि ये तो एहतजाज पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, इतने जरूर कहूंगा कि 1 माह के अंदर अंदर अगर गरबी बात के मिसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो फिर याद रखिएगा कि इस एहतजाज को आप बहुत तशद्दुद एहतजाज समझे, और फिर ये चाला धीरकोट रोड भी बंद होगी, कोयला भी बंद होगा, फिर कारकुन निकलेंगे, सर पे कफन बांध कर निकलेंगे, फिर कोई हमसे शिकवा ना करे। हम अपन आफर कर रहे हैं, वो अपन आफर कर रहे हैं। जो हमारे कायदीन है वो निकले, अवामी हकूक के लिए निकले, हम उनके बस्ते उठाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये कारकुन है, हम सारे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सारे लोग स्टेक होल्डर नहीं बढ़ सकते, इलेक्शन किसी एक या दो ने लड़ना होता है। भाई कारकुन बनना सीखो, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आप कारकुन बनना सीखे, आप गरीबी में हो, आप जिस तबके से हो, जब अच्छे कारकुन बनेंगे अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा। यहाँ पे तकसीम अशरफ ने बात की,
मैं आपकी सियासी इसको जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। मैं यहाँ के सारे नौजवानों की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। मैं इस हल्के का सबसे कमजोर तरीन कारकुन हूँ। किस लिहाज से उसकी भी वजाहत करके यहाँ से जाना चाहता हूँ कि चूंकि सियासत प्राइवेट सिस्टम के तहत चलता है, सियासत नोटू से चलती है। मैं उसमें सबसे कमजोर आदमी हूँ इस दिरकोट के अंदर, कारकुन हूँ, लीडर नहीं कारकुन। शायद मेरे पास आज रंगला से दिरकोट आने का किराया भी नहीं था। शायद अगर मैं अकेला आता तो यहाँ अड्डे में मौजूद ड्राइवरों और गाड़ी वालों को पता है कि सीट मांग कर शायद किसी पिछली सीट में बैठ गया था, और मेरे जो कारकुन हैं वो भी इसी तरह आते हैं। लेकिन एक बात अल्लाह के फजल करम से, दोस्तों की मशावरत से, दोस्तों के तावन से एक बात तय कर ली है, कोई हमारा साथ दे या न दे ये उसकी ज़रूरी है। कोई हमारे साथ चले या न चले अवामी हुकूक के लिए ये उसका ज़र्फ है। हम हर फोरम पे अपने लोगों के हुकूक के लिए निकलेंगे। हम लीडर हैं नहीं, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन एक बात याद रखें, अगर हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो ना दी गई तो फिर नीचे और ऊपर बेल्ट की बात तो नहीं होगी, लेकिन कोई अवामी मीटिंग जिसे कहते हैं, जलसे कहते हैं, हमारे नौजवान तय कर चुके, हम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। इसलिए ये क्या मजाक है? जब चाहो तुम हमें बुलाओ, जब चाहो तुम हमसे नारे मरवाओ, जब चाहो तुम हमें रोडों पर लाओ, जब चाहो तुम हमें धूप में खड़ा करो। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया कर रहे हैं ये कारकुन। अब कारकुनों की टीम, हम उनसे गुजारिश करेंगे, हमें पता है हमें मुश्किलात हैं, हमें पता है कि हम कई जगहों पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बात है, अपने घर से खाते हैं, गुर्बत में, स्वेत पोशी में अपने घर से खाते हैं, अपने घर में रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं। और जब हमारे हकूक पे डाका डाला गया, हमारे हकूक को गस्ब करके हमारे हकूक को गस्ब किया गया, तो फिर आप आराम से नहीं बैठेंगे। कल यहाँ एक मजाक हुआ है, मैं बात नहीं करना चाहता था स्टेज से। सरदार अतीक साहब, आप तो बड़े काबिल एहतराम आदमी हैं, आप तो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, हम कौन और आप कौन? आपने अल्लाह ने आपको इज्जत दी, हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन कल 4 बजे आपने 15 किलोमीटर रोड का नोटिफिकेशन करवा लिया। क्या बात है यार, आपकी क्या बात है? आप तो इतने बड़े लीडर हैं कि फोनों पर नोटिफिकेशन हो जाता है। बजट में वहां असेंबली के अंदर मौजूद है, वहां छपड़ियां घोड़ीकेर की रोड आपको याद नहीं आई, रंगला दिरकोट की रोड याद नहीं आई, हिल सालिया की रोड आपको याद नहीं आई, ये चूड़ की रोड आपको याद नहीं आई, ये झाला टू रंगला रोड आपको याद नहीं आई। और कल शाम को आपने सारी रोडें दे दी आपने कारकुनों के जरिए। एक बात याद रखिए, अपनी भी इज्जत नफ्स का ख्याल कीजिए और हमारी इज्जत का नफ्स का ख्याल कीजिए। अगर हमारी इज्जत नफ्स पर कोई डाका डालने की कोशिश की गई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर सारे लोग बिलजुमला और इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ सुबह से यहाँ खड़े, और उसके बाद प्रेस के सारे, ये अंसार अब्बासी साहब, एजाज नज़ीर साहब जो हमारे साहबी हैं, और जो साहबी दाऊद साहब आरडीके के चेयरमैन हैं, यहाँ के ताहिर असलम साहब, और जो साहबी हैं अहमदाब साहब ने बनी है, उन सब का शुक्रिया, उन सब का शुक्रिया। और ये जो लोग खड़े हैं सारे, आपका शुक्रिया मैं मेरे पास अल्फाज नहीं अदा करूँ, चूँकि मैं इतना लीडर नहीं कि मेरे पास अल्फाज हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जब भी इस सेहत पोश, इस गरीब मुतवस्सित तबके के कारकुन की कई ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह आपके साथ सामने कांधा मिला कर आगे बढ़ूँगा। मैं रिगोली से आए दोस्त, वो उनमें से किसी ने बात नहीं की, बात करनी चाहिए थी, उनका भी शुक्रिया। मलोट से, चनाट से जो लोग आए उनका भी शुक्रिया। धीरकोट में जो लोग मौजूद रहे, अक्षर साहब, रफाकत साहब, वहीद अब्बासी साहब जो वहाँ से आए, और जो यहाँ फैसल आज़ाद साहब के साथ सारी टीम आई, और जितने भी लोग आए, मैं एजाज साहब से माजरत चाहता हूँ कि उन्होंने बात करनी चाहिए थी। जो यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के इम्तियाज़ आज़ाद साहब ने मेरे बात कर ली है, जमील साहब आपके साथ जो लोग आए, जितने भी सारे लोग आए, इफ्तिखार अयूब साहब आपके साथ जितने सारे लोग हैं, हमारा सिर्फ आज का एहतजाज का ये एक मकसद था, वो ये था कि हम जो हमारे लीडरशिप है, जो हमारे
राहबर हैं और जो असम्बलियों के अंदर हैं जिन्होंने वोट लिए हैं, हम उनको तक एक मुख्तसर पैगाम देने आए हैं कि आप हमारी देखभाल करें, आप हमारे हुकूक के लिए आगे बढ़ें, हमें जो हुक्म करेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो इलेक्शन लड़े हम उनके साथ हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा खामोशी से नहीं, खामोशी से नहीं। फेसबुक पे अब सियासत नहीं चलेगी, सियासत होगी तो रोड पे होगी, अवामी हुकूक की बात होगी तो रोड की। एक मतलब फिर टैक्सी यूनियन ताजरों का, यहाँ के जो ताजर हैं, यहाँ के जो धीरकोट के सारे ताजरों का शुक्रिया, सारे ताजरों का शुक्रिया। आप सुबह से हमारी बात सुन रहे हैं, धीरकोट के हर एक बच्चे का शुक्रिया, सालियाँ हिल्स रूम से जो हमारे दोस्त आए उनका शुक्रिया, चीड़ाला यहाँ माखियाले से हमारे दोस्त आए, यहाँ जावेद साहब का बेटा वो पिंडी से आया, उनके साथ जो दोस्त आए उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए वक्त ले गया। अल्लाह ताला से दुआ है, मुमताज़ साहब जाला से आए अपने दोस्तों के साथ, अल्लाह से दुआ है कि जो बात हमने कही सुनी उस पर अमल करने की तौफीक दे और लोगों के हुकूक के लिए जो हम सियासत करते हैं यहाँ पे छोड़ दें, जो सियासत करें लोगों के हुकूक के लिए दिन रात करें। मेरी बात अगर किसी बंदे को भी नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर किसी को नागवार गुजरी हो, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अवामी हुकूक की जंग लड़ेंगे जद्दोजहद। मैं इस मौके पर राजा इफ्तिखार अय्यूब साहब से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए एहतजाजी मुजाहरा, रंगला से आने वाले लोगों, अंदरूनी बेल्ट से आने वाले लोगों, प्रेस के नुमाइंदगान, सियासी जमातों के अकाबरीन, बहुत अच्छी बुनियाद रखी है आपने। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, लेकिन दो चार बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट के मसाइल, क्योंकि हमने देखे हैं लोअर बेल्ट में भी जाते हैं हम, एक जैसे मसाइल हैं, एक जैसे मसाइल हैं, कोई इसमें तफावत नहीं है कि वहाँ कुछ ज़्यादा दूध शहद की नहरें बह गई हैं और इधर नहीं हुआ है। ये जिम्मेदारी उनकी थी जिनके पास 50-70 साल इक़्तिदार रहा, ज़राए रहे, वसाइल रहे, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ना एक तरफ तवज्जो दी और ना उस तरफ तवज्जो दी। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, नौजवानों आपकी जज्बाती बातें भी सुनी मैंने, जज्बाती बातें भी सुनी मैंने। आज डीजल पेट्रोल 250 से ऊपर चला गया है। आज आप लोग जो 20-25 गाड़ियाँ लेके आए हैं, यूनुस इंकलाबी जैसा सफेदपोश आदमी और आप सारे सियासी कारकुन, हम चाहते हैं कि आपकी ताकत बचा के रखें और इस ताकत में आप अकेले नहीं होंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि तमाम पार्टीज़ के स्टेक होल्डर्स आपके साथ खड़े होंगे, तमाम पार्टीज़ के अकाबरीन आपके साथ खड़े होंगे, तमाम पार्टीज़ के लोग आपके साथ खड़े होंगे, उस पैड से भी और इस पैड से भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस हवाले से मैंने ये सोचा है कि एक हफ्ते के अंदर इंकलाबी साहब हम कोशिश करेंगे कि ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें पीपल्स इसको बुलाएंगे, पीटीआई को भी बुलाएंगे और एमसी को भी बुलाएंगे हम उनको। हम चाहते हैं कि घी टेढ़ी अंगली से नहीं सीधी अंगली से निकल जाए, और टेढ़ी अंगली हो तो फिर तंजीम को मसला तो नहीं होता है ना, फिर मार भी खानी पड़ती है, वसाइल ज़राए भी तबाह करने पड़ते हैं, ये गाड़ियाँ भी लेके आते, पेट्रोल भी खर्च। हम चाहते हैं कि ये सारे खर्चे आपके ना हो, आप भी ताकत भी बच जाए, वसाइल भी बच जाएँ। हम कोशिश, मैं सरदार अतीक साहब से कहना चाहता हूँ, एमएलए हैं वो जिम्मेदार है, 75 साल से मामला जो है इस हल्के के उनके हाथ में हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए था इस बात का। और उनने जो इस्तीफा तो जिस तरह तकसीम की है, अतीक साहब, मादरत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे लिए एक अच्छा मौका है, मैं आपका मुखालिफ हूँ, मैं यहाँ लोगों को जज्बाती करके आपको गाड़ियाँ दिलवा सकता हूँ, मैं जज्बाती करके मेजर लतीफ़ को गाड़ियाँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं घी सीधी अंगली से निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अतीक साहब कि जो खराबी आपके हाथों से हुई है, इस खराबी को दूर भी आप करें। ये लोगों के अंदर जो आपने अपनी कलम से एहसास महरूमी पैदार किया है, ये एहसास महरूमी का नफरत न बदलेगा। कल यहाँ इलाकाई और बरादरी के और लोअर बेल्ट के अपर बेल्ट के तासबात पैदा होंगे, लोगों के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा होंगी। ये दूरियां खत्म करने खुदा के नजदीक सरदार अतीक साहब आपकी जिम्मेदारी है। आपको और मेजर साहब को इस हल्के से, इस बेल्ट से, अपर बेल्ट से कहते हैं 20-21 हज़ार वोट मिला है कि नहीं मिला है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बरादरी के ठेकेदारों ने वो मायदा किया था। हाँ, वो मायदा आजकल फेसबुक पे बहुत चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरादरी के जिन ठेकेदारों ने वो मायदा किया था, तनसीम अशरफ
उनकी नीयत में फतूर, उन्होंने मेजर लतीफ को सपोर्ट किया, उन्होंने PTI को सपोर्ट किया, आज वो परेशान हैं, जाके देखें। लेकिन उनकी नीयत में फतूर इसलिए नहीं मैं कह सकता हूँ इनकलाबी साहब कि उन्होंने इस बेल्ट के लिए अपने हकूक के मसाइल के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाए। उस वक्त ये बालू वाले उस मिनिस्टर से साइन करवाए कि नहीं करवाए? उनकी नीयत में तो फतूर नहीं था ना, नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये बेल्ट यहाँ के लोग पसमानदगी इलाके के अंदर मसाइल हैं और ये जो है इसमें उन्होंने एग्रीमेंट लिया। उनको पता नहीं, वो सियासत के अंदर नौमौजूद लोग थे सारे, उनको नहीं पता था आज बालू वाला कहाँ है, कोई मिलेगा उनको? आज PTI की हुकूमत अतीक साहब से पूछ कर इस हल्के के काम करती है, कोई इनसे पूछता है? कोई इनसे पूछता नहीं। इसलिए वो जो लोग जिन्होंने वो एग्रीमेंट किया था, मैं उनको भी ताफ़त देता हूँ इस इज्तिमा से कि उन्होंने कोई बुरी नीयत से नहीं किया। उन्हें अपने आप को बेचा, PTI के हवाले किया, मेजर लतीफ को वोट दी, लेकिन एक सौदा किया कि इस सौदे की बुनियाद पे हमें ये हुकूक उन्होंने अपने तौर पर जायज़ किया जो किया उन्होंने। अगर किसी ने सुनी तो मैं इंशाअल्लाह यकीन रखता हूँ कि कल ये जब तहरीक तूल पकड़ेगी तो अहरावल दस्ते में उनको शामिल करेंगे। हमसे बाहर नहीं हो सकते हैं वो, क्यों होंगे वो? अगर उन्होंने सौदा किया अपना और अपने इलाके के लोगों का और अपनी पार्टी छोड़ के वहाँ गए तो फिर उन्हें अपने लोगों के हुकूक के मुआफ़ज़त भी करना होगी। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इस हल्के के मैं मरकज़ में बैठकर अपर बेल्ट वालों सिर्फ आपका नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं लोअर बेल्ट का भी नुमाइंदा हूँ, मैं तमाम बरादरी का नुमाइंदा हूँ। मैं यहाँ धीरकोट मरकज़ के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबको जोड़ के चलूँगा, आप सबको साथ मिला के चलूँगा। आपके मसाइल के लिए हर दो तरफ के लोगों के साथ मिलकर जदोजहद करूँगा। जो मुझसे हो सका इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें कोई बदयांती नहीं करेंगे। आप बच्चे हैं हमारे, आपको हम आज ही किसी ताकत से फिरौन से टकरा दें और आपको ख़त्म कर दें, हम एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको हमारी बात सुनना होगी। दिलों के अंदर ये बरादरियों की, ये इलाकों के तस्बात नहीं पैदा होने देना है। ये तस्बात, इस दिलों के तस्बात खुदा ने कुरान पाक में भी फरमाया कि ये कुफर के मुताबिक है, ये कुफर हम नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत थी सरदार अतीक साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो हमें जो फर्ज मिले जाके पता करें कि हमने कहीं किसी इस बात को, किसी लोगों पानी के लोगों को इस बात का एहसास हमने नहीं होने दिया कि हमें वहां से वोटें कम मिली हैं या ज्यादा मिली हैं। हम लोगों को खुदा की मखलूक को वोटों से नहीं तोलते, बल्कि लोगों का जायज हक है वो वोटें दें या ना दें। अगर हमारे पास इख्तियारात आते हों तो फिर खुदा ने हमें ये तौफीक दे रखी है कि हम लोगों के बिला तखसीस खिदमत करें और ये खिदमत का सफर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रखेगा। बरक़ियात के हवाले से इनकलाबी साहब आप सब लोगों को छुट्टी दे दें। आप 3-4 लोग जिम्मेदार लोग मेरे पास दफ्तर बैठे, मैं बरक़ियात वालों को यहाँ बुलाता हूँ, आपकी मीटिंग करवाता हूँ। बहुत मुश्किल से ये लोग वहाँ से आए हैं, जिस जज्बे से आए हैं मैं आप उस जज्बे को सलाम करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इस जज्बे को संभाल के रखिएगा, कहीं इन जज्बे को नफरतों में तब्दील नहीं होने देना। जी मैं बुलाता आपके सामने बात करूंगा, मैं बुलाता हूँ। उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्या करेंगे जाके वहाँ। मैं अपने दफ्तरों में बुलाता हूँ बरक़ियात वालों के अपने मसाइल सुन के आप परेशान होंगे। 25,000 के नशे में और 20-30 लोग भी फील्ड के अंदर मुलाजिम नहीं है, लेकिन आपका मामला जायज़ है, जायज़ मामला, आपका जायज़ मामला है। इसका भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर हाल जी ठीक है, ये बात करते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकलीफ होगी ना आपको, वहाँ जाके नारे मारेंगे, क्या करेंगे लोगों को। मैं कहता हूँ छुट्टी दें, आपका शुक्रिया अदा कर दें, आपको फिर कार देंगे, उस कार में आप अकेले नहीं होंगे, सारी पार्टियां आपके साथ होंगी और वो कांडी बेल्ट के लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। इस बेल्ट इधर से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, हर तरफ से लोग आपके साथ खड़े होंगे। आपने अपनी ताकत को बचा के आगे चलना है, बचा के इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आपके तमाम मामलात और मसाइल जो हैं, जो आपके जो हक है वो आपको मिलना चाहिए। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। इस मसाइल के लिए हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जदोजहद करेंगे। जी चल, मेरे ख्याल में हम वो आज पार्टी बुला लेना, सब लोगों को ऑन बोर्ड कर। ये आपकी ये मसला, ये बात, ये तजवीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है? सारी पार्टीज की लीडरशिप को हम बुलाते हैं, लीडरशिप जो मुकामी लीडरशिप है हल्का धीरकोट की, किसी दिन एक हफ्ते के अंदर हम सबसे रब्ता करके जो तारीख तय करेंगे इनकलाबी साहब आपको बता देंगे। आप 2-3 साथी भी आ जाएं ताकि सबको ऑन बोर्ड रखें। कोई ये ना सोचे कि हम उस इलाके की बात नहीं करते हैं, ये इलाका हमसे कोई जुदा है, वो इलाका को अलग है, ये इलाका। इसलिए इस बात को ख़त्म करने के लिए सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करना और अपने
अपने हाथों में रखना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे आपके मामलात जायज़ हैं, 100% जायज़ हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए हम मिल के जदोजहद करेंगे और आपको फिर जब कॉल देंगे यूनुस इनकाबी साहब के लिए जो बात हुई आप तक कन्वे हो जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। और एक और बात करना चाहता हूँ, JKLF के नौजवानों को मैं खिलाने तहसीन पेश करता हूँ। मुजफ्फराबाद के वो मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, हमारा कश्मीरी लीडर यासीन मलिक, अल्लाह उसको सलामत रखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो कश्मीरियों का हीरो है। उसको हिंदुस्तानी अदालत ने मोदी की इमा पे सजा दी, लाइफ प्रिजनमेंट दे दी। और मुजफ्फराबाद पहुंचे UNO यूनाइटेड नेशन के दफ्तर में यादाश्त पेश करने के लिए, हिंदुस्तान के उस जबर इस्तेबदाद के खिलाफ यादाश्त पेश करने के लिए। वहाँ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बेहूदगी की। कोई भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है ना जी, वहाँ IG हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वज़ीर आज़म हो, वज़रा हो, उनको ख्याल करना चाहिए था कि ये बच्चे आपको ताकत देने के लिए आए थे और आपकी ताकत को दवाम बख्शने के लिए मोदी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। आपके हक की बात करने के लिए UNO को वो यादाश्त पेश कर रहे थे कि इस मुल्क के कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान क्या जुल्म कर रहा है। उसके बाद और उसकी बुनियाद पर उन्होंने उनको जख्मी किया, उनको मारा, उन पर आंसू गैस फेंकी, उन पे गोलियां बरसाई, उन पे लाठियां बरसाई और मोदी को खुश करने के लिए पैगाम दे रहे हो। मुझे बताओ आज़ाद कश्मीर को हुक्मरानों ये जुल्म क्यों किया है? और मैं मुतालबा करता हूँ स्टेज से, मुतालबा करता हूँ कि वो उन बच्चों को रहा किया जाए, फिलफौर रहा किया जाए और उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका अदालत किया जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक साहब। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम मुज़ीद होता है। तो रंगला से आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो अपने अपने गाड़ियों के पास पहुँचे और फिर इकट्ठे जहाँ से वापस चलेंगे। तो अब मैं अमर ने अपने करूँगा कि दुआ फरमा लें। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए टाइम होगा 8 मिनट बाद में, ठीक है? अच्छा जो लबीशा फ्रंट के जिसका इफ्तिखार अयूब साहब ने भी जिक्र किया है, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, जिसकी हमने मजम्मत भी करते हैं और रंगला भी अपनी मजम्मत की थी। तो जो लड़के जो उनके जहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी लबीशा फ्रंट की बेहतरीन नुमाइंदगी पर कमांडर मुश्ताक साहब शुक्रिया अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफस को तोड़ जान पर खेल जा, तदबीरों में जीना तवील ज़िंदगी है। तकरीबन 10 दिन से मैं मुहिम में हूँ। गला इंतहाई शदीद ख़राब है, जिस वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी सड़क के बारे में बात करके फिर मैं थोड़ा सा मुजफ्फराबाद के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यूनुस इनकलाबी साहब को जो मुखलिसाना तौर पर वज़ा तौर पर अपने अवाम के लिए काम कर इन्होंने हिस्सा लिया। बाकी आपने देखा होगा मेरे दोस्तों कि तनवीर इलियास ने ऐलान किया था कि मैं यासीन मलिक की रिहाई के लिए मैं अपने ज़ाती पैसे से उसको आलमी अदालत में जाके रिहा करवाऊँगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुनाफिकों, मीटिंग का ऐलान कि मैं मुझे बहुत मतलब जज्बात में कर दिया गया था, लेकिन बात यह है कि इसके बाद मीटिंग है। उन्होंने कहा चलो मुख्तसर मतलब तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम पार्टियों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ से हमारी रंगा रोड की बात की। तो मैं दुआ के लिए हाफिज़ उस्मान फारूकी से यहाँ से सारे लोग मेनाज होटल में चलेंगे। मेनाज होटल जो उधर से जुलूस में सारे लोग आए, वहाँ चाय पिएंगे, उसके बाद निकलेंगे वापस। आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।